edited 5 books, 55 research papers, organized 16 conferences, supervised 20 PhDs, and 150, wow, strange, dissertations are supervised by her. She has presented her researches in many countries like London, Australia, Singapore, Cape Town, South Africa, Paris, Toronto, Canada, and delivered a keynote address in the Conference of Canada. Moreover, she is the editor and advisory board member of many prestigious journals. Professor Jewel, from the bottom of my heart, I thank you from the behalf of my organization team, and I think that we are proud to hear your important and thoughtful sharing, and my participants will also be advantaged by it. Professor Jewel, most warmly I welcome you to come on the dais and present yourself. Professor Jewel, I welcome you. Okay. Thank you, madam. Thank you for sharing my biodata. So I'm presenting. Am I audible? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Okay. Then I'm going to present data. जो research आप लोग करते हो, then research student collecting the data. What is the data? First of all, we need to understand what is the data. Data means you are here and there collecting the information. आप information collect करते हैं, सबसे पहले research में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. अब वो इंफॉर्मेशन कैसी है, कभी किसी भी तरीके की वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो नैरेटिव भी हो सकती है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है, वो नंबरिंग में भी हो सकती है. बट when you collect the data, but there is no means of that particular data without any treatment or without any giving any kind of name, number, categories and scaling. अगर हम ऐसे ही किसी डाटा को कलेक्ट कर ले, कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सभी लोग करते हैं, जो भी रिसर्च पे स्टूडेंट है उनमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, चाहे वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो या वो जो है आपका नैरेटिव हो या स्टोरी फॉर्म में हो या केस स्टडी फॉर्म में हो. जब हम उसको बस सिर्फ कलेक्ट करते हैं तो वो एक तरीके से हमारा डाटा वाला पार्ट क्या है. व्हाट इज डाटा? अब डाटा में वो तो रॉ मटेरियल है, देयर इज नो डाटा. अब रॉ मटेरियल को, इफ डाटा इज रॉ, unorganized facts that need to be processed, उसको प्रोसेस करने का नीड है. डाटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड seemingly random and useless until it is organized. When data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful. नेचर ऑफ डाटा. अब नेचुरली व्हाट काइंड ऑफ डाटा, अगर आपने नैरेटिव किया है, अगर आपने स्टोरी ली है, आपने नंबरिंग के थ्रू किया है, क्वेश्चनियर के थ्रू किया है, क्वेश्चनियर हैं आपके जो भी टूल्स हैं, आपके डाटा टूल, उनके थ्रू जो भी आपको स्कोर मिलता है या स्टोरी या केस स्टडी, व्हाट काइंड ऑफ डाटा, बट दैट इज नो यूज विदाउट एनी प्रोसेसिंग, विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन और विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड. there is no use of that data, particular data. Nature of data is an important. अब हमको सबसे उसके बाद क्या है कि वो डाटा का नेचर क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है. Nature of data is an important concept in research which need to understand to apply correct statistical measurement. अगर हमें नेचर का डाटा पता होगा तभी हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट उसमें कौन सा लगाना है वो लगा सकते हैं. So statistical data can be classified in several ways. अगर स्टैटिस्टिकल डाटा को करें हम तो several ways में the appropriate statistical analysis depends upon whether for the variable are qualitative or quantitative. आपका जो वेरिएबल है या जिसके ऊपर भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वेरिएबल क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है. अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या है ये आप फर्दर पढ़ेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यू नो व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू कलेक्ट एंड यू हैव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. Qualitative data refers to information about qualities or information that cannot measured. It's usually descriptive and textual. ज्यादातर क्वालिटेटिव डाटा क्या होगा, आप डिस्क्रिप्टिव होगा या टेक्सचुअल होगा, टेक्सचुअल फॉर्म में होगा, नॉन न्यूमेरिकल होगा, उसमें नंबर नहीं होता, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता. क्वालिटेटिव डाटा हम क्वालिटी को डिफाइन करते हैं.
जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कलर एंड टाइप ऑफ कार दे ड्राइव, जो भी हम ड्राइव करते हैं. अब क्वांटिटेटिव डाटा इज ए न्यूमेरिकल डाटा. इट्स यूज्ड टू डिफाइन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कंटिन्यूड काउंटेड. Some examples of quantitative data include distance, speed, height, length and weight. जो क्वांटिटी, जिसको हम क्वांटिटी में जिसको मेजर कर सकें, जिसको नंबरिंग दे सके, वो आपका क्वांटिटेटिव डाटा हो गया. अब जैसे मान लीजिए अब एक बुक शेल्फ है, अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल बहुत 100 बुक्स रखी हुई हैं. अब मान लीजिए वो 100 बुक्स का जो शेल्फ है एंड भी 100 सेंटीमीटर, उनमें जो बुक्स है वो 100 सेंटीमीटर टॉल हैं, लंबी है. देयर आर क्वांटिटेटिव डाटा. लेकिन अगर हम मान लीजिए उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहेंगे, लेकिन अगर कलर ऑफ बुक्स जो है वो कितने तरीके की हैं, रेड हैं, ब्लू हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव डाटा. इट मींस एक ही डाटा को हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फॉर्म में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. जैसे अभी उसमें मैंने बताया नंबर ऑफ बुक्स पे अगर आप करेंगे बात, फिर आपको उसका सेंटीमीटर्स कितनी है, तो ये आपका नंबर में हो गया. और अगर हम इसको क्वांटिटेटिव डाटा हो गया, अगर इसको हम कलर के हिसाब से परसीव करते हैं कि मान लीजिए रेड कलर की बुक्स रखी हैं या इतने की रखी हैं, तो वो आपका क्वालिटेटिव डाटा हो गया. तो इसका मतलब आपका अब क्वालिटेटिव डाटा, पहले हमको जानना क्या है कि क्वालिटेटिव डाटा को डिटेल से कि यह है क्या, क्योंकि विदाउट क्वालिटेटिव डाटा को आप या क्वांटिटेटिव को जाने हुए इसके ऊपर कौन सी स्केलिंग आप कर सकते हैं वो पॉसिबल नहीं है, या कौन सी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लग सकते हैं. तो इसके लिए हमको क्या है, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता क्या है, इसको डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन. इट इज इन्वेस्टिगेटिव एंड ऑल्सो ऑफन क्या होता है, ओपन एंडेड. अलाउ रिस्पोंडेंट टू फुली एक्सप्रेस देमसेल्फ. मतलब ओपन एंडेड होता है इसमें, मतलब कि हम इसमें जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम जो रिस्पोंडेंट है उसको हम फ्री छोड़ देते हैं कि वो जिस टॉपिक के हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में वो जो भी बताना चाहे, तो उसका नैरेटिव जो होता है उसको हम लेते हैं. ऑल्सो नोन एज कैटेगोरिकल डाटा. अब इसको हम कैटेगोरिकल डाटा भी बोलते हैं. जो आपका क्वालिटेटिव डाटा है वो कैटेगोरिकल डाटा भी इसको कहते हैं. ये जो आपका टाइप है, दिस डाटा टाइप is not necessarily measured using numbers. अब कैटेगरी है बट जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स में हो, बट रादर कैटेगरी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, लेबल्स, किसी भी चीज का लेबल लगा देना, एंड अदर आइडेंटिफायर्स जो भी हैं. अब नंबर्स लाइक नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, फोन नंबर एक्सेट्रा और however जो आपका regarding as qualitative data because they are categorical and unique to one individual. Examples of qualitative data include gender, male and female, name, stage of origin, citizenship, etc. A more practical example is grade, whereby teachers gives the whole class and easy that was assist by giving comments on spelling, grammar and punctuation, rather the scores. क्वालिटेटिव डाटा का आपका जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, देखिए क्वालिटेटिव डाटा का कहाँ आपको इतना ज्यादा जरूरत पड़ता है. जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हम लें तो उसको हम क्लियर नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो व्हाट टू नो हाउ अ मदर फील्स अबाउट द लॉस ऑफ हर चिल्ड्रन, अगर किसी मदर का चिल्ड्रन लॉस हो जाता है तो वो कैसा फील करती है, इसको आप क्वेश्चन में नहीं बांध सकते, इसको आप न्यूमेरिकल डाटा पे नहीं ले सकते. यू विल need to hear her story to understand how her experiences is organized and what meaning she has given to her suffering. किसी भी तरीके को वो सफर कर रही है तो उसका मीनिंग क्या है, उसका नैरेटिव क्या है, उसका स्टोरी क्या है, उसको जाने बिना आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, नहीं उसको कर सकते. तो ये डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्वालिटेटिव डाटा में ही जाना पड़ेगा, नंबर में और आपके क्वेश्चन में उसको आप बाउंड नहीं कर सकते. एनी अटेम्प्ट एट इट्स quantification will not enable you to get at the principle of organization such experiences. Psychologists have developed various qualitative methods to analyze such as data. One of them is narrative analysis. Also, data are not always available in the form of स्कोर्स. अब नैरेटिव इसमें क्वालिटेटिव डाटा में सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे ये मदर का केस है, इसमें नैरेटिव उसका अपना स्टोरी होगा, उसी के थ्रू आप क्वालिटेटिव डाटा को उसकी किस लेवल का, किस डेप्थ, कितनी डेप्थ में वो अपने लॉस ऑफ चाइल्ड को जो है वो फील कर पा रही है, वो कितना उससे पेन है, कितना उसको दुख है, वो सब आप क्वालिटेटिव और नरेशन से ले सकते हैं. वो क्वेश्चन बाउंड या नंबरिंग से आप उसको नहीं कलेक्ट कर सकते. क्वालिटेटिव डाटा, अब इसको कलेक्शन की टेक्निक भी है. अगर आप क्वालिटेटिव डाटा में जाते हो या उसके ऊपर काम करते हो रिसर्च में, तो उसको टेक्निक है उसको कलेक्शन की. व्हेन कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डाटा, रिसर्चर इंटरेस्टेड इन
हाउ दैट इज स्पेसिफिक डिटेल्स इसमें कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सबसे पहला इसमें ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन आपको पता है, ऑब्जर्वेशन आपका पार्टिसिपेंट भी एज ए पार्टिसिपेंट बन के भी कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं और ऑब्जर्वर बन के भी कर सकते हैं आउटसाइडर से। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटेटिव डाटा है, दिस इज प्रोसेस of studying a subject for a given period of access some information. This may be done with or without consent of the subject is being observed. Observation may be done in several ways. It is not necessarily done by looking the subject for a long period. It may be thought reading material written by or about the subject, stalking जो करते हैं सोशल मीडिया में, जो सोशल मीडिया पे झांकते रहते हैं, इधर उधर से निकालते हैं, आस्किंग अबाउट देम एक्सेट्रा। When the researcher use the method of participant observation or unstructured interview and data are generated in descriptive form in participants' own words, field notes taken by researcher, photographs, interview responses noted by the researcher or taped video recording, informal talks, etc. These type of data cannot be converted into scores or subjected to statistical analysis. Rather, the researcher uses the technique of content analysis. Content analysis is a very, very beautiful or important or very prestigious technique, very informative technique in this sense, in this regarding qualitative data analysis to find out thematic categories and build those categories taking examples from the data. It is more descriptive in nature. It must be understood that quantitative and qualitative methods are not contradictory. अगर हम ऐसे सोचें थे कि क्वालिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं, देयर इज नो कंट्राडिक्टरी। ये एक दूसरे के हेल्पर हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन, अगर इसको हम और तरीके से अगर दोनों को मिला के यूज करते हैं तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और रिसर्च को साउंड बनाते हैं। तो इट इज नॉट कंट्राडिक्टरी, रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। In order to understand the phenomena is totally a suitable combination of both method is what. अब सेकंड उसमें है इंटरव्यू। अब एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं आप और इंटरव्यू के थ्रू। अब इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू का भी क्या है, 1-to-1 conversation between two groups of people where one part interrogate the other party. The wide group is being used because at times we may have 2 or more interviewers and 2 or more interviews. In recent time, we now have phone interviews and Skype interviews also. The subject may be interviewed to collect qualitative data directly from them. Next is the survey and questionnaire. This is a very common technique of collecting qualitative data from a group of respondents. Traditional questionnaires are printed on paper and given to the respondent to fill and handbook to the researcher. Researcher can now create online survey and send them to respondent to fill. This is better than the traditional method because it traditionally collects the data and prepare for analysis. क्वांटिटेटिव डाटा, इसमें आपका जो सर्वे है, सर्वे में जो आपने देखा होगा बहुत सारे ईमेल पे आपके पास आते हैं सर्वे करने के लिए कि उसके बारे में डिटेल लिखना है, उसको कोई भी स्टोरी दे देंगे, इसमें अपना ओपिनियन बताइए। तो वो सर्वे क्वेश्चनियर जो भी है वो आप उस पर डाल देते हैं, ईमेल पे आते हैं या किसी भी फॉर्म में इंटरनेट पे, और उसके थ्रू वो आंसर मांगते हैं। बहुत सारे आते हैं इस तरीके के कि प्लीज, अभी कोरोना के टाइम में आए थे बहुत सारे केस को भर दीजिए, तो कोरोना का वो जानने के लिए किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जो भी होता है जिससे रिलेटेड, उसको जानने के लिए सर्वे के थ्रू भी आपका क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट होता है। अब क्वांटिटेटिव डाटा क्या है इसमें? क्वांटिटेटिव जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनियर, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब देखिए उसमें अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें स्ट्रक्चर्ड है। ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस है। स्ट्रक्चर्ड चाहे आपका पार्टिसिपेंट नॉन ऑब्जर्वेशन में हो, चाहे आपका क्वेश्चनियर में स्ट्रक्चर्ड है, इसमें क्वांटिटेटिव में आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। कंटेंट सीरीज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव डाटा में क्लोज एंडेड क्वेश्चन, देयर इज नो यूज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स एंड क्वेश्चंस आल्सो। द questions and their probable responses are given in these measures. Generally, these responses are given in scaled form.
इसका एक स्केल होता है, स्केल फॉर्म में होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं और क्लोज एंडेड है। फॉर एग्जाम्पल दे में वेरी फ्रॉम 1 to 5। अब मान लीजिए 1 to 5 में 1 लो हो गया, 1 to 5 वेरी किया, और 7 और 11 में आपका हाई है, तो द पार्टिसिपेंट task is to select the most appropriate response. Sometimes there are right and wrong responses. A researcher assign a number to each answer, normally 1 for right answer or 0 for wrong answer. At the end of the researcher calculate the total of all these numbers and arrive at an aggregate score which tells about the participants' level on that particular attribute, for example, academic intelligence. In doing so, the researcher converts the psychological attributes into a quantity, usually numbers. For the purpose of drawing conclusions, a researcher may compare individual scores with that of the group of or compare the scores of two groups. This required use of certain statistical method, like the method of central tendency, mean, median, mode, method of variability, range, quartile deviation, and standard deviation, coefficient of correlation, and so forth. These and some other advanced statistical methods enable a researcher to make inferences and to give meaning to the data. अब व्हाट इज क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा? अब ये किस तरीके का होता है? क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू टाइप्स, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा। दो तरीके में इसको नंबर को हम बांट सकते हैं, नंबर इसमें आपका डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा इज अ होल नंबर दैट कांट बी डिवाइडेड और ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल पार्ट्स, फ्रैक्शन और डेसिमल्स। Examples of discrete data includes the number of pets. Someone has one, can have 2 dogs, but not 2.5 a dog. The number of wings someone's favorable team gets is also a form of discrete data, because a team can't have a half win. It's either a win or a loss or a draw. कंटिन्यूअस डाटा, डिस्क्रीट डाटा का है कि कैटेगरी में जैसे ये फिक्स बंद हो जाता है कैटेगरी में, इसको हम डिस्क्रीट करके, डिस्क्रीट का मतलब उसको हम अलग अलग इक्वल वे में हम उसको नहीं बांट सकते। जैसे अभी इन्होंने बताया अगर टीम विन करेगी तो पूरी करेगी, या विन करेगी या लॉस करेगी या ड्रॉ करेगी, ऐसा नहीं है आधी टीम जीत रही है किसी क्रिकेट की या किसी भी चीज की और आधी टीम हार गई है, तो ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट डाटा है। तो इसमें आपका लॉस, विन, फेल, पास, ड्रॉ, ये सब जैसे इस तरीके से है, तो ये डिस्क्रीट इसको इसीलिए किया गया क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हम इसको हर नंबर पे नहीं इसको डिवाइड कर सकते। इसका एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी के फॉर्म में आगे पढ़ेंगे आप, उसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस डाटा में, कंटिन्यूअस डाटा इज डिस्क्राइब वैल्यूज दैट कैन बी broken down into different parts, units, fractions, and decimals. Continuous data points such as height and weight can be measured. Time can also be broken down by half a second or half an hour. Temperature is another example of continuous data. Discrete versus continuous, दोनों में क्या difference है? There is a easy way to remember the difference between the two types of quantitative data. This is a quantitative data. इसको हम जल्दी से किस उसमें discrete होता है और continuous कौन सा होता है, इसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। Data is considered discrete if it can be counted. If it can be counted, and continuous if it can be measured. अगर किसी चीज को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 तो वो डिस्क्रीट डाटा में हो गया, रैंक में जैसे हम काउंट कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए किसी को मेजर कर सकते हैं, पूरा मेजरमेंट कर सकते हैं, तो आपका पूरा इक्वल इंटरवल पे मेजरमेंट कर सकते हैं और हर उसका यूनिट का मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस डाटा कहेंगे। समवन कैन काउंट स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, टिकट परचेस्ड एंड बुक्स को काउंट कर सकते हैं, व्हाइल वन मेजर्स हाइट, डिस्टेंस एंड टेम्परेचर, इनको हम मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ डाटा पॉइंट्स एंड इज नॉन न्यूमेरिकल। नेचुरली नॉन न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव डाटा, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द इंफॉर्मेशन। बोथ टाइप ऑफ डाटा can also be further broken down into subcategories through
द 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अब डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, क्वांटिटेटिव कर लिया, क्वालिटेटिव कर लिया, अब उसका मेजरमेंट हम किसी स्केल पे तो करेंगे ना, किस स्केल पे मेजरमेंट करेंगे, तो वो स्केल हमको जानने जरूरी है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। Each scale of measurement has its own property and determine how to properly analyze the data. The properties evaluated are identity, magnitude, equal interval and a minimum value of 0. अभी इसमें आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ये लेवल ऑफ डाटा जिसके अकॉर्डिंग हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इस नॉमिनल स्केल क्या, फॉर लेवल ऑफ डाटा मेजरमेंट में नॉमिनल स्केल को अगर हम थोड़ा सा जाने तो इसमें क्या है, दिस इज अ वेरी लोएस्ट काइंड ऑफ डाटा, ये सबसे ज्यादा जो ऊपर के तौर पे हम मेजरमेंट कर लेते हैं, कहते हैं ना कि बस ये टेंटेटिव बता दो, तो उसमें ये नॉमिनल स्केल को हम यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल लेबल्स दैट रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, जो लेबल लगे हुए होते हैं, दीज नंबर्स आर लेबल्स और असाइनमेंट ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट अ कैटेगरी or classification. This is also referred to as categorical data, usually of more than 2 categories, and it is a form of discrete data and should apply non-parametric statistics for analysis. इसमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक एनालिसिस होता है, क्योंकि ज्यादातर इसको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कैटेगरिकल डाटा होता है। जो नॉमिनल डाटा है, नॉमिनल के ऊपर कैटेगरी ले आया, पहले लेबल कर दिया, लेबल में आपने लेबलिंग के अकॉर्डिंग वो कैटेगराइजेशन हो गया। कैटेगराइजेशन जब हो गया तो वो नॉन पैरामेट्रिक जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें इसको यूज करते हैं, जैसे काई स्क्वायर करते हैं। द नंबर असाइनमेंट does not reflect that one category is better or worse. इसमें एक कैटेगरी बेटर है कि एक दूसरी है, ये नंबर जो है जब हम उसको देते हैं उसमें वो इसमें डिस्क्राइब नहीं होते कि कौन सा और कौन सा उसके बाद में जो है वो बेटर है और वर्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल पार्टी, अफिलिएशन, जेंडर, आपका जोग्राफिकल लोकेशन, मैरिटल स्टेटस, ये जो भी है ये सब आपके कैटेगराइजेशन के जो आपका है, और उसमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को हम यूज करना चाहिए हमें। द मोड इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सॉरी, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालें इसकी, तो इसके लिए सबसे ज्यादा हम केवल मोड के थ्रू निकाल सकते हैं। अदर टाइप ऑफ वेरिएबल्स, जो नॉमिनल स्केल है उसमें मोड के थ्रू, अदर टाइप ऑफ वेरिएबल्स दैट ऑफन रिजल्ट्स इन नॉमिनल डाटा और जैसे रिलीजन प्रेफरेंसेस, जिप कोड, ये नॉमिनल डाटा है आपका, जिप कोड, नंबर्स, बर्थ डेट्स, टेलीफोन नंबर्स, ब्लड ग्रुप टाइप, आई कलर, हेयर कलर, आईडी नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एक्सेट्रा। There are limited statistical techniques to analyze this type of data. कौन सी लिमिटेड है इसमें? आप मुझे सुन रही हैं? हेलो, हाँ जी मैम, आप आराम से पहले पानी पी लीजिए। ओके ओके, थैंक यू। गर्म पानी पी लीजिए और फिर तब तक मैं बच्चों के साथ बनी रहती हूँ। आप पानी पी लीजिए आराम से, कॉन्टिन्यूस बोलने में थोड़ा गला ड्राई हो जाता है। जी जी, थैंक यू मैडम। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर चल रहा है मैम, और डिफरेंट डायमेंशन को आपने इसमें लिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जरूर इससे प्रभावित होंगे और अपनी रिसर्च में इन चीज़ों को ध्यान देंगे। जो बेसिकली मैम इस वक्त पढ़ा रही है बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों की रिसर्च में जनरली यही गलतियां होती हैं कि नॉमिनल डाटा होता है और आप स्टेट कुछ और लगा देते हैं। तो जो मैम बता रही हैं कि कौन से स्केल में कौन सी स्टेट लगनी चाहिए, इसको प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, और ये आपके रिसर्च में, थीसिस में मेन गलती होती है। उसके बाद आपको क्या होता है कि जब थीसिस आती है तो उसमें ये बेसिक गलतियां होती हैं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप मैम का लेक्चर इस वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और फिर इस पे अपने को फोकस कीजिएगा कि हमारा कौन सा स्केल है, हमने किस तरह का स्केल, जो हमारा क्वेश्चन आया है वो कौन से स्केल में बना हुआ है, उसके आधार पे आप स्टेट लगाएंगे और अपने गाइड से डिस्कस कीजिएगा इस चीज को। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Then will I continue? Hello, Yes, ma'am, will I yes, continue? Yes, please, okay. please. Thank you, madam. There are limited statistical techniques to analyze the type of data, but chi-square statistics is most common for analyzing data.
Next, ordinal scale of measurement. Ordinal scale defines data that is placed in a specific order. While each value is ranked, there is no information that is specific what differentiates the categories from each other. These values can't be added or to subtracted form. An example of this kind of data would include like survey, where 1 is equal to happy, 2 neutral, and 3 unhappy. This is a ordinal data, happy, neutral, and unhappy. Whereas where someone finished in a race also describe ordinal data, while first place, second place, or third place shows what order the runners finished in. It doesn't specify how far the first place finisher was in front of the second place. मतलब फर्स्ट प्लेस पे जो फर्स्ट आया है वो सेकंड से कितना दूर है ये डजंट मैटर है. ओनली फर्स्ट एंड सेकंड विनर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डिनल डाटा. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वट एवर द ऑर्डर was in front of the second place finisher. The ordinal scale places event in order. Rank order represent ordinal scale and are frequently used in researches relating to qualitative responses, qualitative phenomena. For instance, if one student has the 10th position in her class and another has the position of 40, it cannot be said that 10th position of a student is 4 times as good as that of another. We cannot say. अगर किसी का मान लीजिए पोजीशन 10th है और दूसरे का 40 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 टाइम वो 40 वाला जो है बेटर है या वर्स है. इसका कोई मतलब नहीं है. इसमें केवल रैंक के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक होता है. फर्स्ट अगर किसी का है तो मान लीजिए क्लास में पोजीशन उसकी फर्स्ट है तो 10th रैंक है तो 10th है, 40 रैंक है तो 40 रैंक है. पर इसको हम किसी भी तरीके से इस रूप में नहीं देख सकते कि फर्स्ट रेस में फर्स्ट विनर है और सेकंड विनर है तो हम कहें कि वो इतना ज्यादा है. वो जब उस वाले कैटेगरी में जाएंगे तो वो दूसरे तरीके के. अगर हम ये भी देखते हैं कि कितना टाइम में किया है रेस और कितना दूरी में इनका फर्स्ट और सेकंड का दूरी रहा है तो फिर वो दूसरे स्केलिंग हो जाता है. आप ऑर्डिनल स्केल पे केवल ऑर्डर फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ऑर्डिनल स्केल ओनली permit the ranking of items from highest to lowest. Ordinal measure have no absolute value and the real differences between adjacent rank may not be equal. और जरूर वो equal नहीं होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं. All that can be said is that one person is higher or lower on the scale, but more precise comparison cannot be made. The real difference between rank 1 and 2 may be more or less than the difference between rank 5 and 6. I think you understand कि what is the अगर if difference 1 और 2 रैंक में जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंस जो है वो बिटवीन 5 और 6 रैंक्स दोनों में बराबर का इक्वल जो उनके अंदर है डिफरेंसेस हो. ये इसको ऑर्डिनल स्केल जो है वो मेजरमेंट नहीं करता इक्वल इसका प्रोपोर्शन और रेशो में उसका इंटरवल में. Since the number of this scale have only a rank meaning, ordinal scale is a form of discrete data and should apply non-parametric statistics of non-parametric test to analysis. A percentile or quartile measures is used for measuring dispersion. Central tendency, the median, that is middle rank item is allowed as measure of central tendency and mode is allowed for measures of central tendency. Interval scale of measurement. अब interval scale जो हमारा जिसमें जो दो चीजों में दो आगे नॉमिनल और ऑर्डिनल जो मेजरमेंट नहीं कर पाते वो इंटरवल स्केल में आके कंप्लीट हो जाता है. इंटरवल स्केल कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा बट द डिफरेंस बिटवीन डाटा पॉइंट्स कैन बी क्वांटिफाइड. दिस टाइप ऑफ डाटा शोज बोथ द ऑर्डर of the variable and the exact differences between the variables. If we say 20 to 40 and 40 to 60 temperature in degree Fahrenheit, it is order that difference between variable meaningful. इनका जो order है 20 to 40, 40 to 60 इसमें difference order जो है वो meaningful है. और objective of this scale refers to the interval or distance between the two variables. Data between the two variables can be added or subtracted but not multiplied or divided. Data point on the interval scale have the same difference between them. The difference on the scale between 10 and 20 degree is the same between
20 and 30 degree. This scale is used quantify the differences between the variables. The interval type data allows for the degrees of difference between items, but not the ratio between them. Examples include temperature with the Celsius scale, which has two defined point, the freezing and boiling point of water at specific condition, and then separated into 100 intervals. Interval can be both continuous and discrete. Parametric and non-parametric statistical technique can be used to analyze interval data. इसमें दोनों आपकी टेक्निक यूज हो सकती हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक. बिकॉज पैरामीट्रिक बिकॉज ऑफ इक्वल डिस्टेंस मेजरमेंट करता है, जैसे थर्मामीटर है उसमें पूरा इक्वल डिस्टेंस जो भी है, कितना 1 से 2 में, 2 से 3 में कितना डिस्टेंस है वो इक्वल है, उसको मेजरमेंट करता है. और ऑर्डर भी इसके अंदर होता है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर को भी मेजरमेंट करता है. तो इसमें दोनों तरीके की टेक्निक्स यूज हो सकती हैं, पैरामीट्रिक भी और नॉन पैरामीट्रिक भी. द मोड मीडियन अर्थमेटिक, इसमें मीडियन मोड, अर्थमेटिक मीडियन मोड तीनों यूज हो सकते हैं. और मीन अर्थमेटिक आर अलाउड टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी of interval variables, while measures of statistical dispersion include range and standard deviation. One of the most commonly used interval scale questions is arranged on 5-point Likert scale. जो 5-point Likert scale question है इसमें पूरा इसको हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, where each emotion is denoted with a number and the variable range from extremely dissatisfied to extremely satisfied. अब देखिए extremely dissatisfied to satisfied ये पूरा बिल्कुल मिले हुए नंबर से चलते हैं. अगर हम इसमें करें 1 2 3 4 5 पॉइंट स्केल करें तो आपका ये ऑर्डिनल में 1 2 3 4 5 आ जाएगा. और अगर हम इस पे स्कोर देखें, इसके इतने स्कोर के अकॉर्डिंग करें कि आपका लो स्कोर में एक्सट्रीमली जो आपका डिससेटिस्फाइड से लेकर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका इंटरवल स्केल में इसका पूरा का पूरा मेजरमेंट इक्वली उसमें करता है. रेशियो स्केल का जो मेजरमेंट है वो क्या है? रेशियो स्केल मेजरमेंट इंक्लूड प्रॉपर्टीज फ्रॉम 4 स्केल. चारों तरीके की स्केल जो है वो इसमें जो एक कमी रह जाती है किसमें, नॉमिनल में जो कुछ भी लैक्यूना था वो ऑर्डिनल में हुआ, ऑर्डिनल से जो हुआ वो इंटरवल में हुआ. अब इंटरवल में क्या था सबसे बड़ा कि उसमें जीरो का मेजरमेंट नहीं कर सकते हम, इंटर स्केल में जीरो मेजरमेंट नहीं हो सकता. तो इसलिए क्या हुआ फिर फोर्थ स्केल है आपका रेशियो स्केल. रेशियो स्केल जो है वो मेजरमेंट इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज from all 4 scales of measurement. The data is nominal and defined by an identity. Identity के through उसका nominal data define होगा. Can be classified in order. Order में classified हो सकता है ordinal data में. Contains interval and can be broken down into exact value. जैसे आपका weight, height, number 0 means that the data has no value point. An example of this is height or weight, as someone cannot be 0 centimeters tall or weight 0 kilos, or be negative centimeters or negative kilos. Examples of the use of this scale are calculating shares or sales of all types of data. जीरो भी है इसमें, सेल्स ऑफ और सारा सेल्स हो गया तो 100% हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ तो जीरो में हो गया. ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट डाटा scientists can do the most with ratio data points. The mean, median, mode are measured of central tendency. All statistical measures are allowed because all necessary mathematical operations defined for the ratio scale. इसमें ये सारे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लग सकते हैं. चारों इसके अंदर स्केल एडजस्ट हो स्केल का इसमें मेजरमेंट हो सकता है. इसलिए रेशियो स्केल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फॉर्म में इसको माना गया है. To summarize, nominal scale are used to label और क्या है इसमें describe values. Ordinal scale are used to provide information about the specific order of the data points, mostly seen in the use of satisfaction surveys. The interval scale is used to understand the order and differences between them. The ratio scale gives more information about identity, order, and differences, plus a breakdown of the numerical detail within each data point. Examples include mass, length, duration, plane angles, energy, and electric charge. In contrast,
to interval scale, ratios are now meaningful because having a non-arbitrary 0 point makes it meaningful to say, for example, that one object has twice the length. Very informally, many ratio scale can describe as specify how much of something, that is an amount of magnitude, or how many a count. The Kelvin temperature scale is a ratio scale because it has a unique non-arbitrary 0 point called absolute zero. Using quantitative and qualitative data in statistics, अब हमने quantitative और qualitative दोनों तरीके के डाटा तो हमें पता चल गए, लेकिन कहाँ पे कौन सा यूज होगा इसको जानने के लिए हम क्या करें, इसमें सबसे पहले जो once data scientists have a conclusive data set from their samples, सबसे पहले जो conclusive जो आपका डाटा सेट है उसको सैंपल से लिया, then can start to use the information to draw description and conclusions. To do this, they can use both descriptive and inferential statistics. Descriptive statistics help demonstrate, represent, analyze, and summarize the findings contained in a sample. They present data in an easy to understand and presentable form, such as table or graph. Without description, the data would be in its raw form with no explanation. Frequency data is a form of discrete data, as parts of the values can't be broken down to calculate continuous data points such as age, date. Scientists can use central tendency statistics instead. To do this, they find the mean or average of the data point. Using the age example, this can tell them the average age of participants in the sample. Inferential statistics, अब descriptive statistics and inferential statistics. अब differential जो आपने descriptive statistics है उसको तो आपने देख लिया किस तरीके का होता है. अब inferential statistics ये भी डिपेंड करते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इसमें भी कौन सी statistical technique और इसमें पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक जो भी है. तो inferential statistics में क्या है, inferential statistics are used to develop a hypothesis from the data set. It would be impossible to get data from an entire population. So data scientists can use inferential statistics to explore their results. Using these statistics, they can make generalization and prediction about a wider sample group, even if they haven't surveyed them all. An example of using inferential statistics is an election. Even before the entire country has voted, data scientists can use these kinds of statistics to make assumption regarding who might win based on a smaller sample size. This is the comparison. Pardon? Yes. मैम स्टूडेंट्स की डिमांड है कि थोड़ा हिंदी में यदि ज्यादा हो जाता तो ओके जी थैंक यू ओके मैडम. कंपैरिजन ऑफ, अब इसमें कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट प्रॉपर्टी, जो ये जो इसमें सारे कंपैरिजन जो आपका मेजरमेंट प्रॉपर्टी उसके हैं, जैसे नॉमिनल स्केल है. अब देखिए नॉमिनल स्केल में क्या है, मेजर प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन है ना, मेंबरशिप. अब इसमें इक्वल टू प्लस माइनस का नहीं है. ग्रुपिंग, एडवांस इसमें ऑपरेशन है, ग्रुपिंग है. और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, मोड हम कर सकते हैं, वेरिएबिलिटी नॉन, इसमें वेरिएबिलिटी का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते. ऑर्डिनल में आपका कंपैरिजन लेवल, मोर देन और लेस देन जो इसमें दिखाया है, सॉर्टिंग, मीडियन, रेंज और हेलो एम आई ऑडिबल? जी मैम. ओके मैम एक मिनट पिछली वाली स्लाइड और से फिर से दिखा दीजिए. ओके इससे पहली वाली स्लाइड. ओके थोड़ी देर. इट इज अ कंपैरिजन मेजरमेंट प्रॉपर्टी का. रेशो में है आपका मैग्नीट्यूड का, अमाउंट का हम कर सकते हैं मेजरमेंट, उसमें जीरो लेवल का भी कर सकते हैं, उसमें आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब हो सकता है. और एडवांस ऑपरेशंस उसमें रेशो में क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी में आपका सेंट्रल टेंडेंसी सब निकाल सकते हैं, तीनों पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक दोनों तरीके का डाटा इसमें कर सकते हैं. और वेरिएबिलिटी कोएफिशिएंट वेरिएशन, और इसमें जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड रेंज सब इसमें हम इसमें डाटा का सब तरीके का स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं रेशियो स्केल में.
सारे इसमें रेस्ट्रिक्टेड जिस तरीके से हैं उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट है। कैन आई चेंज? यस मैम, यस। ओके, अब इसमें मेन जो की डिफरेंसेस है ये समझने का, मेन की डिफरेंसेस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा में। ये मैं आपको समराइज कर देती हूँ एक बार। जो इसमें मेन जो की डिफरेंसेस है कि किसमें क्वांटिटेटिव का क्या है और क्वालिटेटिव में क्या है, किस तरीके का है। तो इसमें सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा में कैरेक्टर है, इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा। सबसे पहले डेफिनिशन में क्या है कि जो आपका क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें दीज आर डाटा दैट डील विद क्वांटिटीज, वैल्यूज और नंबर्स। जो आपका क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें हम क्वांटिटीज, वैल्यूज और नंबर्स को यूज करते हैं। और क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, दिस डाटा ऑन द अदर हैंड डील्स विद क्वालिटी। वो किसी भी चीज का क्वालिटी को डिफाइन करता है, किसी भी स्टोरी का, किसी भी नैरेटिव का, गुड है कि बैड है कि किस तरीके का है, तो उसका नरेशन है इसमें क्वालिटेटिव में। इसमें नंबरिंग नहीं होती, इसमें क्वांटिटीज का वैल्यू नहीं होता, इसमें क्वालिटीज की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें है मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी का क्या है, कैरेक्टर मेजरमेंट किस चीज का, क्वांटिटेटिव क्या है, वो मेजरेबल है, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आपका रेशियो स्केल में आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जो मेजरमेंट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो लगा सकते हैं, सब मेजरमेंट कर सकते हैं, और इंटरवल स्केल का अपना मेजरमेंट है। लेकिन इसमें क्वालिटेटिव में क्या है, दे आर जनरली नॉट मेजरेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी भी कोई नंबर में या किसी भी चीज में हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इसको मेजरमेंट हम नहीं कर सकते क्वालिटेटिव डाटा को, बिकॉज इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो कि अगर किसी की मदर का मान लीजिए चाइल्ड का, उसका मेजरमेंट उसका नैरेटिव और क्वालिटेटिव के थ्रू ही हो सकता है। उसको कितना पेन है, हाउ मच, लेकिन उसको कितना है, किस तरीके का, उसको आप ट्रूली मेजर करना चाहें तो आप उस तरीके से न्यूमेरिकल बेस पे या क्वेश्चन बेस पे उसको बाउंड नहीं कर सकते, नहीं मेजर कर सकते। नेचर ऑफ डाटा, अब नेचर ऑफ डाटा क्वांटिटेटिव क्या होता है, वो एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा आपके पास होता है, जो भी आप नंबर में डाटा लाते हो क्वेश्चनियर्स करके या स्केलिंग को आप जाते हो फील्ड में और उसको आपको फिल कराते हो, फिर उसके ऊपर आपका स्कोरिंग करते हो, तो जो नंबर आता है तो उस नंबर को फिर आप प्रोसेस करते हो वो डाटा के रॉ डाटा को। तो जो भी नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में वो सारे क्वांटिटेटिव डाटा में आते हैं। और क्वालिटेटिव में दे आर डिस्क्रिप्टिव रादर देन न्यूमेरिकल इन नेचर। उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, चाहे उसको हम चार्ट के थ्रू करें, चाहे पिक्चर के थ्रू करें, फोटोज के थ्रू करें। जो हम डिफरेंट टाइप के जो फोटोज वगैरह हैं उसको भी उसके थ्रू भी इसका होता है, स्टोरीज के थ्रू करें, केस स्टडी के थ्रू करें, तो ये सारा क्वालिटेटिव डाटा है। इसमें नंबर नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा की इसका नेचर नहीं है। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें क्या है, कंक्लूसिव है। क्वांटिटेटिव डाटा में आप क्या करते हैं कि जब आप रिसर्च थीसिस करते हैं तो लास्ट में जो फाइंडिंग्स होते हैं उसको कंक्लूड करते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने के बाद में आप उसको कंक्लूसिव करते हैं कि कंक्लूड कर रहे हैं कि इसका इफेक्ट, इसके जो हाइपोथेसिस बनाया है उसके अकॉर्डिंग कंक्लूड करते हैं कि इसका इफेक्ट इस फॉर्म में है कि इस फॉर्म में नहीं है। और जो क्वालिटेटिव आपका है, क्वालिटेटिव में क्या है, एक्सप्लोरेटरी। उसमें आप एक्सप्लोर करते हैं कि जो आपने किया है, पहले से कोई हाइपोथेसिस फॉर्मेशन नहीं होता। क्वालिटेटिव डाटा में आप कोई हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करके नहीं चलते हैं, आप केवल फील्ड में आप जाते हैं, जिस केस या जिस ग्रुप के आपको ऊपर स्टडी करनी है उसमें जाते हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से करें, ऑब्जर्वेशन से करें या इंटरव्यू से करें, सर्वे से करें, और आप उसको केस को जाके स्टडी करते हैं। स्टडी करके जो भी कुछ मिलता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोरेटरी हो जाता है, इसमें कंक्लूसिव नहीं है। एंड नेक्स्ट आपका क्वांटिटी मेजर, इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा में क्या मेजर क्वांटिटीज सच एज लेंथ, साइज, अमाउंट, प्राइस एंड इवन ड्यूरेशन भी इसमें काउंट होता है। तो क्वांटिटेटिव डाटा में हम ये सारे के सारे मेजरमेंट करते हैं। और क्वालिटेटिव डाटा में नैरेटिव्स ऑफन मेक यूज, इसमें जो है एडजेक्टिव्स एंड अदर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स टू रेफर टू डाटा, और अपीयरेंस जैसे कलर, टेक्सचर एंड अदर क्वालिटीज। तो इसमें ये सब हम क्वालिटेटिव डाटा के अंदर ये सब मेजरमेंट करते हैं, जिसमें हम जो क्वांटिटेटिव में इसमें नहीं करते उसको हम इसको दूसरे फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये कंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सप्लोरेटरी होता है। तो इसलिए ये इसका ये डिफरेंस है। और अदर डिफरेंसेस आर क्या है, जैसे मेथड ऑफ कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन में भी डिफरेंसेस है। जो क्वांटिटेटिव जो आपका डाटा है, स्टडीज है, उसका स्टैटिस्टिकल जो इज यूज्ड टू जनरेट सब्सिक्वेंटली एनालिसिस दिस टाइप ऑफ डाटा।
तो इसमें मेथड जो डाटा कलेक्शन के हैं उसके भी अलग है, आपका क्वेश्चन किसी के थ्रू जो भी आप करते हो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट देने के लिए, और जो क्वालिटेटिव है उसमें दे आर ओनली गेन्ड मोस्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन। इसमें ज्यादातर ऑब्जर्वेशन और उसमें जो भी आपका डाटा कलेक्शन है उसमें आपका ऑब्जर्वेशन का कोई वो नहीं है। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा में आप जब जाते हैं पॉपुलेशन में या सैंपल में जब आप जाते हैं जिसके ऊपर आप डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं पूरा, उसका केवल उससे जो कुछ भी आप उससे पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट या जो भी मेथड अपनाते हैं उसके साथ उसका ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं। जबकि इसमें डाटा कलेक्शन में आपका स्कोरिंग करते हैं, उसके बाद नंबर मिलता है, उसका मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा का अलग होता है। अप्रोचेज इसमें क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में जाते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा में जाते हैं, तो सबसे पहले इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव डाटा में आपका सब्जेक्टिव क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका आप क्या जानना चाह रहे हो, आप उसमें सब्जेक्टिव मैटर में जो भी वो है उससे आप पूरा का पूरा नैरेटिव लेते हैं, नरेशन लेते हैं, उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव फॉर्म करके या हाइपोथेसिस करके कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो इतना पेन होगा या इतनी खुशी होगी, ये सब चल के हाइपोथेसिस आप नहीं चलते हो, इसमें पूरा सब्जेक्टिव है। डाटा स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर्ड होता है क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड हम नॉन पार्टिसिपेंट में इसमें यूज करते हैं, क्वेश्चन हम अनस्ट्रक्चर्ड करते हैं, नरेशन पूरा का पूरा, केस स्टडी जो भी वो उससे बताना चाहे उसको हम पूरा एज इट इज उसको डाटा के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसमें लेवल ऑफ अकरेंस, अब डिटर्मिनेंट्स क्या है, लेवल ऑफ अकरेंस, इसमें डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें तो लेवल हमने डिसाइड कर लिया 0.5 लेवल पे, इतने लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे या जो भी लेवल पे हम इसको करते हैं। और इसमें डाटा को की डेप्थ को अंडरस्टैंड करते हैं क्वालिटेटिव में कि कितना डेप्थ में उसमें किसी भी चीज का जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितनी डेप्थ में है, कितना उस लेवल पे डेप्थ में है, उसको हम करते हैं, उसको लेवल को फिक्स करके नहीं चलते हैं। इसमें रिलायबिलिटी, द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एड, इसमें क्रेडेंस और क्रेडिबिलिटी टू इट इज सो दैट quantitative data is overall seen as more reliable and objective। अब देखिए जो आपका क्वांटिटेटिव डाटा है वो ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव डाटा। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो क्वालिटेटिव डाटा है उसमें हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नेचुरल डाटा नहीं मिल पाता है। चाहते हैं हम नेचुरल में है, जाते हैं नेचुरल सराउंडिंग में है, लेकिन उसमें जो आपका एक्सपेरिमेंटर है उसके अपने इंटरेस्ट का भी इफेक्ट आता है, और बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक्सटेनियस वेरिएबल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनका इफेक्ट आता है, वो पूरा लेंदी उसका वो है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसका डाटा जो है रिलायबिलिटी कम हो जाती है। और डाटा कलेक्शन टेक्निक, क्वांटिटेटिव डाटा में क्या है, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट्स, इसमें सभी तरीके का डाटा कलेक्शन टेक्निक आप यूज करते हो, एक्सपेरिमेंटल भी करते हो, इंटरव्यूज भी करते हो, सर्वे और क्वेश्चन जो आपका क्वांटिटेटिव सर्वेज करते हैं। और आपका नॉन क्वालिटी डाटा में क्या होता है, क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव सर्वेज, इसमें फोकस्ड ग्रुप मेथड, डॉक्यूमेंटल रिवीजन, इसमें डॉक्यूमेंटल रिवीजन जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटल रिवीजन, फोकस्ड ग्रुप, हमने एक ग्रुप ले लिया कि एक प्रॉब्लम ले ली, एक ग्रुप ले लिया, एक एस्पेक्ट ले लिया कि इस एस्पेक्ट से रिलेटेड हम इस ग्रुप के ऊपर स्टडी करेंगे तो जाने की क्या है, तो उसमें क्वालिटेटिव सर्वे होता है कि क्वालिटी बेस्ड उसमें उसको हम उस ग्रुप के ऊपर फोकस करके जो भी इस ग्रुप के अंदर चीजें होती हैं उनको हम सब्जेक्टिव और सारा का सब उसको पूरा का पूरा हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल फॉर्म में क्वालिटेटिव डाटा हमको मिल जाए। बट उसमें जो लिमिटेशंस है वो अलग मैटर है, दैट इज टोटल डिफरेंट मैटर। सैंपल, अब सैंपल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। क्वांटिटेटिव डाटा में तो आपको पता है 300, 400 डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव। अगर आपने किस तरीके की प्रॉब्लम आपने ली है, किस तरीके की प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल को लार्ज लेते हो। इसमें कंपैरेटिवली लार्ज सैंपल होता है क्वांटिटेटिव डाटा में। और क्वालिटेटिव डाटा में क्या है, क्वालिटेटिव डाटा में स्मॉल नंबर और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं। इसमें आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता और स्मॉल नंबर होते हैं, मतलब छोटे ग्रुप के ऊपर हम केस स्टडी या कोई भी चीज करते हैं तो किसी से रिलेटेड वो छोटे ग्रुप के ऊपर करते हैं और वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा जनरलाइज हो सकता है, ये रिप्रेजेंटेटिव डाटा है हमारा, इसको हम इसका हम पूरा क्लेम नहीं कर सकते हैं। आउटकम, अब डेवलप्स इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। अब आउटकम क्या है, इसमें जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं हमें नेचर ऑफ डाटा के अकॉर्डिंग उसका पता चलने लगता है कि किस डायरेक्शन में डाटा जा रहा है, उसका नेचर पता चलने लगता है। डेवलप इनिशियल, उसमें इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारा डाटा जैसे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट और थोड़ा सा उसमें जाते हैं हमको पता चलता है कि ये हमारा सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है, कि किस इसमें जा रहा है। जबकि इसमें क्या है, क्वालिटेटिव में रिकमेंड्स द फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें जब पूरी स्टडी कर लेते हैं, पूरा का पूरा क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव में पूरा स्टडी कर लेते हैं, जितना भी हमारा मंथ का टाइम जितना भी होता है और जो भी ये सब्जेक्ट एस्पेक्ट के ऊपर करना चाहते हैं, पूरा स्टडी करने के बाद ही उसको डीप में डेप्थ स्टडी करके और सोर्सेज से, सब सोर्सेज से करके, तब हम इसके बारे में कोई आउटकम दे सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा में। स्टार्टिंग में हम किसी पेशेंट से या किसी जिससे हम क्वालिटेटिव डाटा जो भी हमारा सब्जेक्ट है या जो भी पार्टिसिपेंट्स है, हम स्टार्टिंग में उससे बात करके या थोड़ी सी डाटा को कलेक्ट करके या थोड़ा सा ही केस स्टडी या कुछ करके हम प्रेडिक्शन या कोई भी किसी भी तरीके का आउटकम नहीं दे सकते, ना देना चाहिए उसमें, क्योंकि पता नहीं वो पोर्शन किस तरीके से किसी के इमोशंस या कोई भी चीज बटी हुई होती है, उसको हम आउटकम जो है लास्ट में पूरा करने के बाद ही देते हैं। तो दिस इज आई थिंक ये पार्ट खत्म हो गया है आपका कि डिफरेंसेस और ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये जुड़ा हुआ है। अगर हम स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, डाटा है, डाटा को पहले हम जाने कि वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, फिर हम उसको जानने के बाद क्वांटिटेटिव डाटा कितना तरीके का होता है, क्वालिटेटिव तो नैरेटिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, फिर हम इसको जाने कि कितना है डिस्क्रीट और आपका कंटिन्यूस डाटा हो जाता है। उसके बाद में सेकंड में नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये इन्फ्रेंशियल है कि ये डिस्क्रिप्टिव है। अब देखिए इन्फ्रेंशियल डाटा ऑटोमेटिकली जिसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, वो इन्फ्रेंशियल डाटा, हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस लेके काम करते हैं, तो वो इन्फ्रेंशियल हो गया। अब इन्फ्रेंशियल में आपका जितना भी आता है ये आपका क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसके थ्रू हम इन्फ्रेंशियल प्रेडिक्शन या जो भी करते हैं। और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। तो क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में हम डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कितना पेन है, कितना, उसके फोटोज के थ्रू करेंगे। आपने देखा होगा कई बार अलग अलग तरीके का, जिस तरीके के इमोशन होते हैं उसी तरीके के फोटोज, उसी तरीके की केस स्टडी, नैरेटिव, ओपन एंडेड क्वेश्चन वगैरह के थ्रू हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसको नैरेटिव होता है, उसका पूरा का पूरा हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये आपका क्वालिटेटिव डाटा में आता है। तो ये आपका सब जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमको ये सारा, और स्केल के अकॉर्डिंग तो हम डाटा को लेंगे ना, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लगाएंगे। अगर मान लीजिए नॉमिनल स्केल है तो उसके ऊपर हम मोड का यूज करेंगे, ऑर्डिनल स्केल है तो हम कैटेगरी कर लेते हैं, तो उसमें नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कर लेते हैं यूज। जैसे आपका काई स्क्वायर लगा लिया हमने, इस तरीके से हम कर लेते हैं। मीडियन लगा लिया, रेंज मीडियम जो है। अब दूसरा जो हम इन्फ्रेंशियल जो नेक्स्ट टाइप का रेशियो स्केल लेते हैं उसकी अलग है, उसमें प्लस माइनस करते हैं। और जो आपका रेशियो स्केल और चारों स्केल इंक्लूड करके ज्यादातर जो पीएचडी होती है स्टूडेंट्स की जो लोग करते हैं, तो इसलिए हम जब इसमें सारा का सारा चारों का एग्जांपल मैंने आपको दिया है पहले, जो हम उसको यूज कर लेते हैं, तब हम इसमें सभी तरीके का जो स्केल है वो रेशियो स्केल में अगर चारों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इस वजह से हम इसमें स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट सभी तरीके का लगा सकते हैं। लेकिन कौन सा लगाना है इसके लिए हमें डेप्थ में जाकर इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपका एक पोर्शन फिनिश हुआ है। अगर आप मुझे बोले तो मैं नेक्स्ट प्राइमरी और ये डाटा का इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, हमने डाटा ले लिया, डाटा का प्रोसेस कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या होता है कि डाटा जो हम लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो हमारी किस तरीके से लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमारी प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर हम लोग डाटा कलेक्ट कर जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन, प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। तो मैडम कैन आई स्टार्ट अगेन? हेलो, यस मैम, आप ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू, ओके, वेलकम। अब देखिए व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, अब हमने प्रोसेस कर लिया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड है इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट एज टू मेक इट यूजफुल। अब इसमें है इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डाटा आया, उसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, स्ट्रक्चर्ड कर लिया, जैसा कि आपने अभी मैंने आपको बताया उसी तरीके से प्रोसेस्ड कर लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जो डाटा हमने सारे इसमें करने के बाद में हम इस डाटा को, ये इंफॉर्मेशन जो है उसको हम, इट इज कॉल्ड, जो पूरा करके उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिसर्च एक्टिविटीज आर अचीव्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब इंफॉर्मेशन जो है हम अलग बहुत सारे फॉर्म से अचीव करते हैं। जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से लेते हैं, कहने का मतलब ये है। अब वो कौन कौन से सोर्सेज है जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन डाटा नहीं बन सकता। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो डाटा नहीं होगा। तो आप पीएचडी रिसर्च करें तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, फिर आपका किस टाइप का डाटा है, क्या है, उसमें आप जाएंगे। तो आपका इंफॉर्मेशन क्या है, एक तो प्राइमरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा मतलब आपने प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन ली है वो प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, देखिए डाटा तो ये कई तरीके का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्रॉस सेक्शनल डाटा, कैटेगोरिकल डाटा, टाइम सीरीज डाटा, स्पेशियल डाटा और ऑर्डर डाटा। लेकिन हमारा इसमें जो ज्यादातर यूज होता है और जो मुझे इसमें आपको बताना है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि वो ज्यादा यूजफुल है और उसी का ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। अब प्राइमरी डाटा क्या है, इसमें सबसे पहले आप ये बहुत केयरफुली जान लीजिए, व्हाट इज द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, वो एक टाइप ऑफ डाटा that is collected by researcher directly। जिस डाटा को रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट करता है
फर्स्ट हैंड डाटा भी इसको बोलते हैं। डायरेक्ट पॉपुलेशन में जाके डायरेक्ट खुद अपने डाटा को कलेक्ट करता है, उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। चाहे वो डाटा इंटरव्यूज के थ्रू हो, इंटरव्यू वो फेस टू फेस ले रहा है, वो सर्वे कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये किसी भी तरीके से मेथड से कर रहा है, लेकिन जो है वो अपना डाटा फर्स्ट हैंड डाटा जो 1 to 1 कर रहा है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा आर आल्सो यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स वेयर द डाटा ओरिजिनल अब जहां से कि डाटा का ओरिजिनली जो सोर्स है, जो वेयर द डाटा ओरिजिनली ओरिजिनेट्स, जहां से डाटा ओरिजिनली ओरिजिनेट होता है, वहां से जब हम डायरेक्ट डाटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एंड आर रिगार्डेड एज द बेस्ट काइंड ऑफ डाटा, उसी को हम बेस्ट काइंड का डाटा बोलेंगे, क्योंकि हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, रिलायबिलिटी का भी उसका बढ़ जाता है, क्योंकि जहां से वो ओरिजिन होता है, उसी ओरिजिनेट जहां से सोर्स है, वहां से हम डायरेक्ट उसको इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा। द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा यूजुअली क्या क्या हो सकते हैं इसमें, स्पेसिफिकली टू मीट द डिमांड्स, जो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा डाटा किस तरीके का होगा, उस पर डिपेंड करता है किस टाइप की रिसर्च हम ले रहे हैं। बिफोर चूजिंग अ डाटा कलेक्शन, जब से हम डाटा कलेक्शन, सबसे पहले हम सोर्स, बिफोर डाटा कलेक्शन सोर्स, थिंग्स लाइक द एम ऑफ रिसर्च, सबसे पहले हमारा एम क्या है रिसर्च का, एंड टारगेट पॉपुलेशन क्या है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब किस पॉपुलेशन से हमें डाटा करना है, क्या हमारा एम है रिसर्च का, तो उस एम के लिए कौन सी पॉपुलेशन उसके लिए टारगेट पॉपुलेशन है, उसमें से हमको सैंपलिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन डूइंग अ मार्केट सर्वे, अगर मान लीजिए आप मार्केट सर्वे में जा रहे हैं, तो गोल ऑफ द सर्वे क्या है आपका, सैंपल पॉपुलेशन, नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, सबसे पहले आपका गोल क्या है कि वो सैंपल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना जिसपे आप सर्वे कर रहे हो। दिस इज व्हाट विल डिटरमाइन what data collection sources will be most suitable। अब इसमें कौन सी डाटा कलेक्शन जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा, कौन सी पॉपुलेशन सुटेबल है, उसको आपको करना है। ऑफलाइन सर्वे कर रहे हो, विल बी मोर सुटेबल फॉर अ पॉपुलेशन लिविंग इन रिमोट एरिया। अब अगर आप देहात में रिमोट एरिया में कहीं कर रहे हो, तो उसमें ऑफलाइन जो सर्वे करोगे पॉपुलेशन पे डायरेक्ट जाके, वो ज्यादा सुटेबल होगा। तो ये नेचर ऑफ डाटा, एम आपका क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट हैंड डाटा, प्राइमरी डाटा कैसे आपको लेना है। अगर आपको रिमोट एरिया से लेना है, फर्स्ट हैंड डाटा लेना है, तो आप किस पॉपुलेशन पे लेना है, क्या एम है, डायरेक्ट उस पॉपुलेशन पे जाके ओरिजिनेट, जहां उसका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिनेट जहां से वो होती है प्रॉब्लम, उसके ऊपर डायरेक्ट आप जाके डाटा कलेक्शन करते हो, तो वो फर्स्ट हैंड डाटा, प्राइमरी डाटा, और इसको इसमें इस कैटेगरी में आप रखते हो। इसमें ऑनलाइन सर्वेज भी होते हैं। अब इसमें जब आपके प्राइमरी डाटा के एग्जांपल्स क्या है, मान लीजिए आप मार्केट सर्वे कर रहे हो, स्ट्रेटजी कर रहे हो, तो इसमें प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, अब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अबाउट द टारगेट मार्केट। अब आप किसी मार्केट के ऊपर कर रहे हो, बिजनेस स्ट्रेटजी कर रहे हो, तो आपके कौन से मार्केट के ऊपर करना है, ये टारगेट पॉपुलेशन है, तो आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और कस्टमर जो है उनसे रिलेटेड करनी है। तो द डाटा गैदर ड्यूरिंग मार्केट रिसर्च इज प्राइमरी। अगर मार्केट आपका रिसर्च जो है उस पर कर रहे हो, तो प्राइमरी डाटा एज इट इज टेलर्ड स्पेसिफिकली टू मीट द बिजनेस नीड। तो बिजनेस नीड को जो कि स्पेसिफिकली फुलफिल करता हो, उसमें जाके जो पर्टिकुलर आपका किस टाइप का बिजनेस का आपका डाटा कलेक्शन कर रहे हो, किस पे आप सर्वे कर रहे हो, तो वो अब आप जाके डायरेक्ट जब करते हो, तो वो आपका मार्केट से रिलेटेड डाटा होता है। जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन डूइंग मार्केट रिसर्च, जो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन से वो मार्केट रिसर्च ही करते हैं। अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड करते हैं। दे आर अबाउट टू रिलीज, विल नीड टू कलेक्ट डाटा लाइक परचेजिंग पावर। अब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेजिंग पावर कितनी है, उसका फीचर प्रेफरेंसेस क्या है, उसका डेली फोन यूजेस, जैसे डेली फोन यूजेस एक्सेट्रा फ्रॉम द टारगेट मार्केट। अब जो टारगेट मार्केट है वो इसमें जैसे डेली फोन का, ये सब के थ्रू डायरेक्ट आप डाटा कलेक्शन करते हो। डाटा फ्रॉम पास्ट सर्वे आर नॉट यूज्ड बिकॉज द प्रोडक्ट डिफर्स। जो पास्ट सर्वे की अगर आप बात करोगे तो वो इसमें यूज नहीं होगा, प्रेजेंट जो आप सर्वे करोगे वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट थीसिस। अब स्टूडेंट थीसिस में क्या है, व्हेन कंडक्टेड एकेडमिक रिसर्च और अ थीसिस एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट कलेक्ट डाटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज। ज्यादातर जो अब स्टूडेंट थीसिस करता है, जो भी एकेडमिक रिसर्च करते हैं, उसमें प्राइमरी डाटा सोर्स जो है वो यूज होता है। द काइंड ऑफ डाटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस may vary according to kind of research। जो हमारा प्रोसेस है डाटा कलेक्ट करने का, वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू किस टाइप का रिसर्च हम कर रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ रिसर्च बीइंग परफॉर्म, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट है,
तो स्टैटिस्टिकल डाटा गैदरिंग है, हम क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल कर रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल हमारा रिसर्च है तो हम लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो किस तरीके का हम रिसर्च कर रहे हैं वो लैब एक्सपेरिमेंटल में कि किस में कर रहे हैं, तो उसके में डायरेक्ट जाके स्टूडेंट जो है डाटा कलेक्शन करता है। तो उसको अपनी थीसिस में उस डाटा को जो उसने कलेक्ट किया है उसी को प्रोसेस करके, उसी पे ट्रीटमेंट करके डायरेक्ट उसी को यूज करता है। तो ये प्राइमरी डाटा होता है और वो स्टूडेंट थीसिस में ज्यादातर ये अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिसर्च, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ये प्राइमरी डाटा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कैरिंग आउट अ रिसर्च प्रोजेक्ट विद द एम ऑफ फाइंडिंग, अब मान लीजिए स्टूडेंट जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर कि उसका एम क्या है, फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑफ डेली इनटेक ऑफ फ्रूट जूस। अगर मान लीजिए डेली फ्रूट जूस इनटेक कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, मानो इसके ऊपर कोई स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है। ऑन एन इंडिविजुअल्स किसके ऊपर होता है, वेट विल नीड टू टेक अ सैंपल पॉपुलेशन। अब उसमें उसका जो सैंपल पॉपुलेशन क्या है, उसका वेट वो लेगा और फ्रूट जूस उसको रोज प्रोवाइड करा के वो उसका पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट है। तो इसमें नीड टू टेक अ सैंपल पॉपुलेशन ऑफ 2 और मोर पीपल। अब 2 या उससे ज्यादा पीपल लिए और उसको उसके ऊपर फ्रूट जूस का क्या इफेक्ट होता है, उसको इंडिविजुअल्स के पर्टिकुलर वेट पे उस पर स्टडी कर रहा है मान लीजिए। तो इसमें 2 और मोर पीपल फीड देम विद फ्रूट जूस डेली। अब उसको डेली फ्रूट जूस देंगे एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन देयर वेट, और उनके वेट में चेंजेस कितना आया है उसको रिकॉर्ड करेंगे। द डाटा गैदर थ्रू आउट दिस प्रोसेस इज प्राइमरी। अब मान लीजिए देखिए ये अलग पार्ट है कि आपको कितने दिन फ्रूट जूस देना है, किस पॉपुलेशन को देना है, किस एज ग्रुप को देना है ना। तो ये सब तो आपका इट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन, ये तो आप सैंपल और डिजाइन के पार्ट में जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें डाटा की बात करें तो इसमें प्राइमरी डाटा की तो क्या होगा कि उसको डेली फ्रूट जूस देंगे, फिर उनका रोजाना वेट लेंगे। तो ये क्या है प्रोसेस जो है, इसको क्या बोलेंगे हम, गैदरिंग जो प्रोसेस है ये डाटा कलेक्शन का, इसको प्राइमरी डाटा कलेक्शन बोलेंगे। अब जैसे ट्रॉमा सर्वाइवर है, अब ट्रॉमा सर्वाइवर्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पीपल रिएक्ट डिफरेंटली। अब ट्रॉमा में हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। देयर इज यूजुअली अ ट्रेट common to people who have gone through the same kind of trauma. Same kind of trauma में people का जो नेचर है वो ऐसा है, लोगों का वो अलग अलग तरीके से उसको डील करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से डिफरेंट उनके रिएक्शन होते हैं। तो रिसर्च एम्ड एट फाइंडिंग आउट हाउ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ओवरकम द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विल इंक्लूड इंटरव्यू। अब इंटरव्यू द आपका सर्वाइवर्स, तो इंटरव्यू जो सर्वाइवर्स है उसका इंटरव्यू लेना। अगर डायरेक्ट मान लीजिए कैसे जो सेक्सुअल अब्यूज है उसको कैसे ओवरकम करते हैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को, तो उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप इंटरव्यू जो सर्वाइवर्स है उसके इंटरव्यू लेंगे, और सेंडिंग देम सर्वे और एनी अदर प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो ये भी प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है। आप उसको किसी के भी थ्रू किस तरीके से करना है, डायरेक्ट उसको करके करते हैं। एक्सपीरियंस डिफर एंड एवरी सिचुएशन इज यूनिक, क्योंकि हर सिचुएशन के एक्सपीरियंसेस वो डिफर करते हैं। देयरफॉर यूजिंग सेकेंडरी डाटा मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो इस तरीके के जो केस है ट्रॉमा से सर्वाइवर, और इसमें अगर हम सोचें कि इसमें हम सेकेंडरी डाटा को यूज कर लें तो वो यूजफुल नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। तो तो ये डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम कि किसमें हमारा जो प्राइमरी डाटा यूज करना है, किसमें हमको सेकेंडरी डाटा यूज करना है, ये भी हमको जानना जरूरी होता है। बट रिसर्च में ज्यादातर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जहां से ओरिजिन हुई है वहां से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट जब हम लेते हैं तो वो प्राइमरी डाटा की तरह से हम उसको यूज करते हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्टेड मेथड, अब इसके मेथड क्या है कलेक्शन के, देखिए प्राइमरी डाटा को कलेक्टिंग जो इसके मेथड है इंटरव्यू बेसिस है। डायरेक्ट जब हम सर्वाइवर होता है उससे सीधे इंटरव्यू लेते हैं, रिसर्चर जो है डायरेक्ट उससे इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज इन्वॉल्व्स 2 ग्रुप्स, इसमें 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल where the first group is interviewer and जो क्वेश्चन पूछता है, एंड सेकंड ग्रुप जो है वो इंटरव्यू होता है, जो सब्जेक्ट होता है रिस्पोंडेंट होता है जो क्वेश्चन के आंसर देता है। तो जो क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू मे बी ओरल और वर्बल एज द केस मे बी, वो क्या हो सकते हैं इंटरव्यू के आपके ओरल भी हो सकते हैं, ओरल वर्बल जिस भी फॉर्म में इंटरव्यू का लेते हैं उसी तरीके से इंटरव्यू का आपका इंटरव्यू मेथड में 2 लोगों के एक साथ, 2 लोग एक साथ भी ले सकते हैं, 2 लोगों के एक साथ भी ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं, ग्रुप में भी ले सकते हैं। तो ग्रुप का इंटरव्यू करने के लिए जो आपका रिसर्चर है, जो इंटरव्यूअर है, वो भी उतने ही चाहिएंगे। और उसी तरीके से जब ग्रुप होते हैं तो हर इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उतने ही इंटरव्यूअर और इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग इनका रेशियो और प्रोपोर्शन लिया जाता है। तो इंटरव्यू मेथड के थ्रू जो भी आप डाटा कलेक्शन करते हैं वो आपके सारे के सारे किस में आते हैं, वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन में आते हैं। इंटरव्यूज कैन बी कैरिड आउट इन 2 वेज, 2 तरीके से इंटरव्यू का, इन पर्सन इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपको पता ही है कि इन पर्सन इंटरव्यू लेते हैं, पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू लेते हैं, वो भी आपका प्राइमरी डाटा है। और टेलीफोन के थ्रू अगर हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं वो भी आपका
इंटरव्यू डाटा होता है, क्योंकि ये टेलीफोन के थ्रू भी होता है। एन इन पर्सन इंटरव्यू रिक्वायर्स एन इंटरव्यूअर्स और अ ग्रुप इंटरव्यूअर्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरव्यू इन अ फेस टू फेस फैशन। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस जो इन पर्सन होता है, फेस टू फेस क्वेश्चन के आंसर होते हैं, और इसमें पर्सन टू पर्सन जो है क्वेश्चन और उसके आंसर जो इंटरव्यू पूछता है और वो उसको आंसर देते हैं। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, फोकस्ड और अनफोकस्ड भी है, एक्सेट्रा। Some of the tools used in carrying out in-person interview include a notepad or recording device to take note the conversation. Very important. जो आपका नोट जो है वो नोट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू ह्यूमन फॉरगेटफुल नेचर। अब कभी हमने उसको सोचा, वर्बली हमने ले लिया, उसको हम भूल गए, इसलिए नोटबुक होना या रिकॉर्डिंग होना या वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लेते हो प्राइमरी डाटा। टेलीफोन इंटरव्यू ऑन द अदर हैंड आर कैरिड आउट ओवर द फोन थ्रू ऑर्डिनरी वॉइस कॉल और वीडियो कॉल्स। द टू पार्टीज इन्वॉल्व may decide to use video call like Skype to carry out interview। तो जब दोनों पार्टी डिसाइड करती है 1-to-1 फेस टू फेस, तो ये आपका प्राइमरी डाटा के अंदर आता है। अब मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इनके लिए इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट है और ये प्राइमरी डाटा के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है आपका इंटरव्यू के, इसमें सर्वे एंड क्वेश्चनियर। सर्वे एंड क्वेश्चनियर आर टू सिमिलर टूल्स यूज्ड इन कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। They are a group of questions typed or written down and the sample of study to give responses। इसमें क्या करते हैं आप, सर्वे टाइप के क्वेश्चन में ये दोनों एक तरीके से सर्वे एंड क्वेश्चनियर एक ही तरीके से सर्वे कोई टूल के फॉर्म में यूज होते हैं। तो इसमें ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस टाइप होते हैं, रिटन डाउन एंड सेंड टू द सैंपल टू स्टडी टू गिव रिस्पॉन्सेज के लिए हम उसको भेज देते हैं रिस्पॉन्सेज लेने के लिए। आफ्टर गिविंग द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज, जब हमें जितना रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज होता है उसको लेने के बाद सर्वे इज गिवन बैक टू द रिसर्चर्स टू रिकॉर्ड। फिर वो सर्वे जो है उसको करके रिस्पॉन्स करके उसको बैक भेज देते हैं रिसर्चर उसके रिकॉर्ड के लिए। इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट अ पायलट स्टडी वेयर द क्वेश्चन आर फिल्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड मीन टू असिस्ट द वीकनेसेस ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ टेक्निक यूज्ड। तो इसमें पायलट सर्वे ज्यादातर हमें कराना चाहिए अगर हम ये टेक्निक करके इसमें यूज करते हैं, और क्योंकि ये इसकी क्वेश्चनियर आर फिल्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड मीन टू असिस्ट द वीकनेसेस ऑफ द क्वेश्चंस और टेक्निक यूज। तो इसमें कभी हम आंसर नहीं दे पाते हैं या कभी जो इसके क्वेश्चन किस तरीके के हैं उसको नहीं डिफाइन कर पाते हैं। अगर हमने सर्वे और क्वेश्चनियर इसके बाई इस टूल को इस तरीके से यूज किया कि हमने भेज दिया और हमको वो आंसर करके वापस करेंगे, तो इसमें हमें पायलट टाइप का सर्विस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इसकी जो वीकनेसेस हैं अगर हम भेजते हैं ईमेल के या किसी के भी थ्रू तब हमें बैक होता है, तो उसमें बहुत तरीके का ये वीकनेसेस आ सकती हैं। तो इसमें पायलट टाइप का सर्वे ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। There are two main types of surveys। अब इसमें यूज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में हम दो तरीके का सर्वे यूज करते हैं। कौन कौन सा, ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे आर कैरिड आउट यूजिंग इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन, PCs, tablets, etc. And they can be shared with respondents through email, website or social media। ऑफलाइन सर्वे ऑन द अदर हैंड डू नॉट रिक्वायर एन इंटरनेट। इसमें इंटरनेट कनेक्शन फॉर इट टू बी कैरिड आउट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑफलाइन सर्वे कौन कौन से हैं, पेपर बेस्ड। जो ऑफलाइन सर्वे है वो है पेपर बेस्ड सर्वे। However, there are also offline survey like, मतलब ये पेपर लाइन सर्वे जो है वो वैसे तो आपका ऑफलाइन सर्वे है, लेकिन फिर भी इसमें इंटरनेट की ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्म प्लस दैट कैन बी फिल्ड विद अ मोबाइल डिवाइस। विदाउट एक्सेस टू एन इंटरनेट कनेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। मोबाइल डिवाइस पे भी आपका कनेक्शन, जब आप ऑफलाइन सर्वे के लिए पेपर बेस्ड सर्वे आपने भेज दिया, लेकिन उसको भी भर के वापस भेजने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दिस काइंड ऑफ सर्वे इज कॉल्ड ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वे। अब दोनों इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन सर्वे होते हैं बिकॉज दे कैन बी फिल्ड ऑनलाइन बट रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन टू बी सबमिटेड, इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन सर्वेज के फॉर्म में इनको बोलते हैं। अब इसमें है नेक्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन स्टडीज related to behavior sciences। जो behavior sciences है उनमें observation method यूज होता है। The researchers uses observation as a scientific tool and method of data collection। Observation as a data collection tool is usually systematically planned and subjected to check
एंड कंट्रोल। अब इसको सिस्टमेटिकली प्लान करते हैं ऑब्जर्वेशन में, और इसको चेक और कंट्रोल, कुछ कंट्रोल मतलब रेस्ट्रिक्टेड करके, जैसे कंट्रोल सर्वे, कंट्रोल फॉर्म में सर्वे ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसमें प्राइमरी डाटा को उस फॉर्म में करते हैं। There are different approaches of the observation method जो हम इसमें यूज करते हैं। डिफरेंट अप्रोचेज हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल और अनकंट्रोल, एंड पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट अप्रोच। मतलब जितने भी तरीके के ऑब्जर्वेशन है वो सारे के सारे हम इसमें प्राइमरी सर्वे में, जो आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन है या जो प्राइमरी डाटा है उसके अंदर यूज कर सकते हैं, बट बी केयरफुली। द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज कैरेक्टराइज्ड बाय केयरफुल। इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड जो अप्रोचेज हैं उसको कैरेक्टराइज बाय केयरफुल डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो उसको हमें केयरफुल डिफाइन करना चाहिए, सब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये केयरफुल डिफाइन करने का मैटर है। अदरवाइज केयरफुल डिफाइन अगर हम नहीं करेंगे तो हमें प्राइमरी डाटा में रिलायबल रिजल्ट नहीं मिल सकते और वैलिडिटी भी इसकी कम हो जाती है। स्टाइल ऑफ ऑब्जर्वर, कंडीशंस एंड सिलेक्शन ऑफ डाटा, ये सब हमें इसमें जो है ध्यान देना चाहिए, इसको केयरफुल करना चाहिए कि स्टाइल ऑफ ऑब्जर्वर जो है उसका स्टाइल क्या है, कंडीशंस क्या है, एंड सिलेक्शन ऑफ डाटा, और डाटा का सिलेक्शन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये भी बहुत यूजफुल है। एन ऑब्जर्वेशन प्रोसेस दैट सेटिस्फाई दिस इज सेड टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड वाइस वर्सा। इसका ऑब्जर्वेशन प्रोसेस जो है वो उसको क्या है आपका, सेटिस्फाइड, दिस इज सेड टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड वाइस वर्सा। स्ट्रक्चर और इसमें जो भी हम कर रहे हैं उसको हमें सेटिस्फाइड या सेटिस्फेक्शन के लेवल पे कंट्रोल करके, उसको मैनेज करके, प्री प्लान करके, तब हमको उसको फील्ड में जाना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए ऑब्जर्वेशन मेथड को। अ कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड अप्रोच, इसमें वेदर द रिसर्चर टुक प्लेस इन अ नेचुरल सेटिंग। अब अगर मान लीजिए नेचुरल सेटिंग में वो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है पार्टिसिपेंट, और अकॉर्डिंग टू सम प्री अरेंज प्लान, कुछ पहले से अरेंज प्लान हो, इफ एन ऑब्जर्वेशन इज डन इन नेचुरल सेटिंग इट इज अनकंट्रोल्ड। अगर नेचुरल के सेटिंग में हम करते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है, बट बिकम कंट्रोल इट इज लेबोरेटरी। अगर हम इसको कंट्रोल सिचुएशन में करते हैं तो वो लेबोरेटरी में करते हैं। लेबोरेटरी में कंट्रोल सिचुएशन में, जैसे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे लेबोरेटरी में कंट्रोल सिचुएशन में हम उसको करते हैं डाटा कलेक्शन। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट हैंड डाटा एंड प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है जो हम थीसिस के लिए करते हैं। बिफोर एम्प्लॉइंग ए न्यू टीचर, अब जैसे मान लीजिए कोई न्यू टीचर है उसको हम एम्प्लॉय देते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में किसी भी, तो हम क्या करते हैं, आस्क फॉर सैंपल टीचिंग। हम उसको कहते हैं पहले टीचिंग करके दिखा दो, मान लो सैंपल टीचिंग के लिए हम उसको बोलते हैं टू टेस्ट द टीचर्स एबिलिटी। अब टीचर्स एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम कहते हैं सैम्पलिंग टीचिंग हम कराएंगे, टीचिंग आप करोगे इसमें। तो द इवेलुएटर जॉइन्स द क्लास एंड ऑब्जर्व द टीचिंग मेकिंग हिम और हर अ पार्टिसिपेंट। अब वो पार्टिसिपेंट की तरह से जो इवेलुएटर है वो उसको क्लास को ज्वाइन करेगा और बैठ जाएगा, तो वो उस क्लास को अटेंड करता है। तो ये सैंपल टीचिंग उससे उसके रिजल्ट वो फर्स्ट हैंड डाटा इसके थ्रू ले सकता है, डायरेक्ट ले सकता है। The evaluation may also decide to observe from outside of the class। वो ये भी डिसाइड कर सकता है मैं क्लास के बाहर खड़ा रहूंगा और जो टीचर है उसका सैंपल मुझे पता भी चल जाएगा और उसको नहीं पता चलेगा और मैं ऑब्जर्व कर लूंगा। तो ये भी वो नॉन पार्टिसिपेंट तरीके से भी कर सकता है इवेलुएटर। तो इस तरीके से जो भी डाटा चाहे वो पार्टिसिपेंट करे, नॉन पार्टिसिपेंट करे या नेचुरल सिचुएशन में करे, वो सारा का सारा प्राइमरी डाटा होता है। बट बी केयरफुल, इसमें सब प्लान करना और कंट्रोल करना और कहाँ लेना है, ये सब किस टाइप का प्रॉब्लम है, ये सब डिफाइन करना पहले बहुत जरूरी होता है। अब इसमें फोकस ग्रुप है। अब देखिए फोकस ग्रुप से भी आप जो डाटा लेते हैं वो प्राइमरी डाटा लेते हैं। फोकस ग्रुप में क्या होता है, गैदरिंग 2 और मोर पीपल। इसमें 2 या उससे ज्यादा पीपल को इकट्ठा करते हैं विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और हु पोजेस कॉमन ट्रेट्स, जिसमें कि और कौन कौन से लोग कॉमन टाइप की ट्रेट्स रखते हैं, वो उनको एक साथ कलेक्ट करके उसके ऊपर जो है 2 या उससे ज्यादा पीपल हो सकते हैं और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, उसको हम फोकस्ड ग्रुप डाटा कलेक्शन कहते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन। दे सीक ओपन एंडेड थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। A focus group is a primary source of data collection because the data is collected directly from the participant। डायरेक्ट फ्रॉम द जो फोकस ग्रुप है, डायरेक्ट हम पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन कहते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मार्केट रिसर्च वेयर अ ग्रुप ऑफ मार्केट कंज्यूमर्स एंगेज इन अ डिस्कशन विद द रिसर्च मॉडरेटर। स्लाइटली सिमिलर टू इंटरव्यू, ये इसी तरीके का होता है, स्लाइटली सिमिलर टू इंटरव्यू, बट दिस इन्वॉल्व डिस्कशन एंड इंटरेक्शन रादर देन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मतलब ये इसी तरीके का है प्राइमरी डाटा में इंटरव्यू की तरह, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, खाली हम क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर लेते हैं, और ग्रुप जो आपका फोकस ग्रुप है उसमें क्या करते हैं, उन चीजों पे हम डायरेक्ट उस पर डिस्कशन भी करते हैं, उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं। तो फोकस ग्रुप जो है वो
लेस फॉर्मल है, एंड पार्टिसिपेंट्स आर वंस हु डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग विद मॉडरेटर्स टू ओवरसी द प्रोसेस। तो इसमें ये इस तरीके से ये डिफरेंस इसमें इंटरव्यू में और इसमें होता है। पर फोकस ग्रुप का जो डाटा है वो सीधे सीधे प्राइमरी डाटा और इफेक्टिव डाटा होता है। एंड एक्सपेरिमेंट्स आपको सबको पता है, एक्सपेरिमेंट जो हम लैब में करते हैं वो आपका सीधे प्राइमरी डाटा होता है। एंड एक्सपेरिमेंट इज ए स्ट्रक्चर्ड स्टडी वेयर द रिसर्चर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द कॉजेज, क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, और एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, जो हमने उसको डाटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। दिस डाटा कलेक्शन मेथड इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर। नेचुरली एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर का अपना ओन डेलिबरेटली कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल में होता है। हु डिटरमाइन विच सब्जेक्ट इज यूज, वही डिटरमाइन करता है कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस पे एक्सपेरिमेंट करना है, किस सिचुएशन लैब में करना है, हाउ दे आर ग्रुप्ड एंड द ट्रीटमेंट दे रिसीव, किस तरीके का वो लेंगे, वो सब का सब डेलिबरेटली डिपेंड किसके द्वारा होता है, वो पूरा एक्सपेरिमेंटर के थ्रू होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर सेलेक्ट द सब्जेक्ट, सबसे पहले वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, विच विल बी कंसिडर्ड, जो जिसके ऊपर भी कर रहा है वो सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड करता है, सेलेक्ट करता है। सम एक्शंस आर देयरफॉर carried out on these subject, while the primary data consisting of actions and reactions are recorded by the researcher। तो प्राइमरी डाटा में क्या करते हैं, जो भी एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, कंसिस्टिंग जो भी होते हैं, वो उनका सबको रिकॉर्ड करता रहता है। आफ्टर विच दे विल बी एनालाइज एंड अ कंक्लूजन विल बी ड्रॉन। उसके बाद में जब वो कलेक्ट कर लेता है प्राइमरी डाटा, उसके बाद में उसको वो एनालाइज करता है, प्रोसेसिंग करता है और कंक्लूजन करता है। फ्रॉम द रिजल्ट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस। Although experiments can be used to collect different type of primary data, it is mostly used for data collection in the laboratory। ज्यादातर लेबोरेटरी के जो डाटा होते हैं, डाटा कलेक्शन होते हैं, रिकॉर्डिंग करने के थ्रू हो या जिस भी तरीके से सिलेक्शन और वो करें, वो सब आपके प्राइमरी डाटा के अंदर आते हैं। अब सेकेंडरी डाटा, अब आपने प्राइमरी डाटा तो आपको मैं समझती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कैन आई स्टार्ट secondary data also? Can I complete? Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. सेकेंडरी डाटा, आप देखिए ये इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा इज द डाटा दैट, ये डाटा कौन सा है, जैसे जो आप आज यूज कर रहे हो लेकिन किसी ने उसको प्राइमरी तरीके से डाटा कलेक्ट किया है, प्राइमरीली डाटा कलेक्ट करके वो रखा गया है, और जब आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है तो आप विदाउट एनी डाटा कलेक्शन, उसका जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन है जो भी उसका है, उसको आप एज इट इज अपने डाटा में यूज करते हो, तो वो सेकेंडरी डाटा में होता है। जैसे सेकेंडरी, जैसे ऑलरेडी हैड बीन कंट्रोल थ्रू प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू होता है, मेड रेडिली, इसको हम रेडिली अवेलेबल डाटा भी कहते हैं, फॉर रिसर्चर्स टू यूज फॉर देयर ओन रिसर्च। जो रेडिली अवेलेबल डाटा है उसको रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए यूज करता है, पर रेडिली अवेलेबल कहाँ से आया, किसी ने उसको प्राइमरीली कलेक्ट किया पहले और उसको यूज किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो वो आपको जब आप यूज कर रहे हो तो रेडिली अवेलेबल है। इट इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड इन द पास्ट, जो कि पहले किसी रिसर्चर के थ्रू डाटा कलेक्ट प्राइमरी तरीके से सोर्सेज से हुआ है, और उसके बाद आपने उस डाटा को विदाउट एनी डाटा कलेक्शन आपने उसको एज इट इज अपनी प्रॉब्लम, नेचर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज कर लिया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अ रिसर्चर मे हैव कलेक्टेड द डाटा फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए करता है, देन मेड अवेलेबल टू बी यूज्ड बाय अनदर रिसर्चर। किसी ने अपने प्रोजेक्ट में डाटा कलेक्ट किया और उसने दूसरे रिसर्चर ने उसको अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज किया डाटा कलेक्ट करके। द डाटा में आल्सो हैव बीन कलेक्टेड फॉर जनरल यूज with no specific research purpose, like in the case of the national census। अब जो सेंसस होते हैं, नेशनल सेंसस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो विदाउट एनी एम भी यूज होते हैं। सेंसस के थ्रू आपको अगर मान लीजिए कोई पॉपुलेशन पे ऐसी पे काम करना है, तो आप सेंसस में जाएंगे, वहां से उसको डाटा का पूरा वो लेंगे, उसमें आप रेंडमाइजेशन या जो भी आपको टेक्निक या जिस भी काम का है उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें उस डाटा को यूज करते हैं। तो वो डाटा का जो आपका नेशनल सेंसस है, उसको वहां से आप डाटा लेके और उसको पूरा का पूरा आप यूज कर सकते हैं, और जिस भी फॉर्म में आपको रिक्वायरमेंट हो। अ डाटा क्लासिफाइड एज सेकेंडरी फॉर अ पर्टिकुलर रिसर्च मे बी सेड टू बी प्राइमरी फॉर अनदर रिसर्च। अब क्या है, अ डाटा क्लासिफाइड एज सेकेंडरी, जिसको हम सेकेंडरी के फॉर्म में क्लासिफाइड करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिसर्च किसी में, मे बी सेड उसको टू बी प्राइमरी फॉर अनदर रिसर्च। दूसरी जो रिसर्च है, जो आप दूसरी रिसर्च जो जिसने पहले किया है उसके लिए पर वो प्राइमरी है, और आप उसको जो यूज कर रहे हो सेकेंड डाटा की तरह कर रहे हो। दिस इज द केस व्हेन अ डाटा इज बीइंग
रीयूज, मतलब डाटा को जब रीयूज करते हैं, मेकिंग इट अ प्राइमरी डाटा फॉर द फर्स्ट रिसर्चर। अब जो फर्स्ट रिसर्च में कोई डाटा यूज हुआ है कलेक्ट करके, और उसके बाद में रीयूज जब करता है सेकंड, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। एंड सेकेंडरी डाटा फॉर द सेकेंड रिसर्च इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, मतलब जो पहला रिसर्चर है उसने जब डाटा कलेक्ट किया तो उसने यूज किया उसको प्राइमरी डाटा की तरह, उसने यूज डाटा कलेक्ट किया, उसने उसको अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने थीसिस में, अपने प्रोजेक्ट में यूज किया। उसके बाद उस डाटा को जब उसने छोड़ दिया तो आपने वो डाटा को अपने प्रॉब्लम ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग, अपने थीसिस जिस तरीके का आपने प्रॉब्लम लिया है, रिसर्च कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसी डाटा को आप रीयूज करते हो, दोबारा यूज करते हो, मीन्स विदाउट एनी कलेक्टिंग द डाटा। केवल आप उसको रेडीमेड डाटा को उठा के अपने डाटा के लिए यूज करते हो, तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी आप देखिए, जो आप थीसिस करते हो उसमें जो आपका डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट है, उसमें आप क्या करते हो, जो ऑलरेडी पहले से कर चुके होते हैं रिसर्च, उसको स्टडी को सपोर्टिंग स्टडी में लाते हो कि हमारे जो रिजल्ट है तो वो ये मिले, और जो सपोर्टिंग डाटा है जो इस ईयर में स्टडी हुई है, पहले जो ईयर में स्टडी हुई होती है, कि इन ईयर में जो स्टडी हुई है उनको जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट मिले और हमारी स्टडी को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च किया, उनको रिजल्ट मिले, और रिजल्ट को आपने अपनी स्टडी के लिए जो आपने प्राइमरी डाटा आपने जो कलेक्ट किया, जिससे आपके कंक्लूजन निकले, जिसके आपके रिजल्ट निकले, उसको सपोर्टिंग डाटा की तरह आप यूज कर रहे हो। इसी तरीके से आपका लिटरेचर रिव्यू में भी क्या होता है कि आप जो लोग लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करते हो, जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी होती है, एब्स्ट्रैक्ट है या किसी भी चीज के थ्रू आप लेते हो, बुक के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, तो आप उसको अपने लिटरेचर रिव्यू में, आप अपने थीसिस में उसको एज ए लिटरेचर रिव्यू यूज करते हो, सेकेंडरी डाटा यूज करते हो। जबकि आपका जो अपना एम है, जो आपका प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर डाटा कलेक्ट आप करोगे जाके, जिस भी सोर्सेज से करोगे, जो भी उसके प्रोसेसिंग करोगे, वो आपका प्राइमरी डाटा है। अब सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा इसमें कौन कौन से हैं, कैसे हैं? अब देखिए, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा आप कहाँ से उठाते हो सेकेंडरी डाटा? इसमें बुक्स हैं, पर्सनल सोर्सेज है, जर्नल्स हैं, जर्नल से तो आप करते हो सारा काम जो करते हो, न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं। तो सेकेंडरी डाटा आर नोन टू बी रेडीली अवेलेबल कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी डाटा। अब इसमें क्या है, उसको रेडीली अवेलेबल होते हैं ये तो, क्योंकि प्राइमरी डाटा में तो ये आपको डाटा कलेक्शन करना होता है, और ये बिना कलेक्शन के रेडीली अवेलेबल होते हैं। इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल रिसर्च एंड नीड फॉर मैन पावर टू यूज दिस सोर्सेज। इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है मैन पावर या बहुत ज्यादा उसकी नीड की रिक्वायरमेंट जो नहीं होती। वेरी लिटिल रिसर्च जो है, बहुत कम रिसर्च में आप इस तरीके से इनके बेसिस पे, खाली इन्हीं की बेसिस पे अगर आप करो तो ज्यादा रिसर्चेज, इसमें काउंटेबल रिसर्चेज, बहुत ज्यादा रिसर्चेज नहीं है, बिकॉज इनका आगे इनका फैक्टर है कुछ, जिसकी वजह से हम इनको केवल प्राइमरी को में सेकेंडरी को यूज करते हैं। विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया and the internet, secondary data sources have become more easily accessible. इंटरनेट के इनके थ्रू जो आपका सेकेंडरी डाटा है मोर इजीली एक्सेसिबल है। सम ऑफ दिस सोर्सेज आर हाईलाइटेड बिलो। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां पे सेकेंडरी डाटा पड़ा होता है और जहां से आप सेकेंडरी डाटा उठाते हैं? बुक्स हैं, जैसे बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल वेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। देखिए, अभी तो इंटरनेट तो आप चल पड़े हैं, पहले क्या होता था, हम लोग बुक्स लेते थे, जर्नल में जाते थे, वहां से लेके आते थे, हाथ से लिखा करते थे पूरा, तो वो सब हम डाटा वहां से बुक्स ही ढूंढते थे, बुक्स कहाँ है, जर्नल कहाँ है। आज तक तो सब इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। तो आजकल क्या है, बुक्स अवेलेबल फॉर टॉपिक्स यू कैन थिंक ऑफ। व्हेन कैरिंग आउट रिसर्च, ऑल यू हैव टू डू इज अ लुक फॉर अ बुक ऑन द टॉपिक बीइंग रिसर्च। जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करो उससे रिलेटेड बुक ढूंढते हो। Then select from the available repository or book in that area. Book, when carefully chosen, are an authentic sources of authentic data and can be useful in preparing a literature review. तो जो भी आप literature review में करते हैं वो authentic book, आप जो ऑथेंटिक बुक है वही ऑथेंटिक बुक उठाएं, और उन्हीं ऑथेंटिक बुक से जो भी आप लें उसको एज ए लिटरेचर रिव्यू में जो सेकेंडरी डाटा की तरह आप यूज करें, वो जरूरी है। वहां ये बुक से भी आप इसको लेते हैं और ले सकते हैं, और लेते भी हैं बहुत सारे हम अपने उसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है। पब्लिश्ड सोर्सेज, जो पब्लिश सोर्सेज है वहां से भी उठाते हैं डाटा। अब पब्लिश सोर्सेज अवेलेबल है डिफरेंट रिसर्च टॉपिक, बहुत सारे रिसर्च टॉपिक है जिन पे पब्लिश सोर्सेज जो आपके पब्लिश्ड है वो सोर्सेज हैं उसमें अवेलेबल है। ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाटा गैदर्ड फ्रॉम these sources depends upon majority on the writer and publishing company। जो इस पे डिपेंड करती है, इसका जो डाटा आपकी ऑथेंटिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? जो डाटा जो है वो जनरेटेड फ्रॉम, किससे जनरेटेड फ्रॉम दीज सोर्सेज डिपेंड्स अपॉन मेजोरिटी ऑफ द राइटर, जो ज्यादातर ने उसी के ऊपर स्टडी किया हो जो आप उसको उठा रहे हैं, एंड पब्लिशिंग कंपनीज। पब्लिश्ड सोर्स में भी प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रिंटेड भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी, एज ए केस में भी, जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग दोनों फॉर्म में मिल सकता है। दे मे बी पेड और फ्री डिमांडिंग।
अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, पेड और फ्री डिमांडिंग क्यों का है, ऑन द राइटर एंड पब्लिशिंग कंपनीज डिसीजन। कई बार कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, डाटा कलेक्ट करवा लेती है अपने उसके लिए, लेकिन अगर आपको मान लीजिए सपोर्टिंग डाटा या किसी के लिए खुलवाना होता है तो वो पेड आपको पे करना होता है, तब वो आपको प्रोवाइड कराती हैं। बहुत सारे ऐसी जर्नल हैं, बहुत सारी ऐसी स्टडी हैं जब जहाँ पेमेंट करने के बाद में वो स्टडी आपको पूरी खोलते हैं तब आपको दिखाते हैं, अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट आते रहते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें ये पेड और फ्री दोनों तरीके का हो सकता है। अब जर्नल्स हैं, जर्नल्स तो आप लोग सब जानते हो, जर्नल्स आर ग्रेजुअली बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन बुक्स, क्योंकि ये अपडेट होते रहते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग जर्नल हर महीने निकलते हैं, मासिक भी निकलते हैं, और बहुत सारे जर्नल तो इतने अपडेट होते हैं, तो वो जर्नल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बुक। These days, when data collection is concerned, this is because journals are updated regularly with new publications on a periodical basis, therefore giving to data information। तो डाटा इंफॉर्मेशन जो आप जर्नल, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, कहते हो कि जो अपडेट है, अगर मान लीजिए हम क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स से कि लेटेस्ट से करना शुरू करो, जो लेटेस्ट स्टडी हुई है वहां से पीछे जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2020 में अगर मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हो तो आपने पता चला 1990 पे आपका लिटरेचर रिव्यू कर दिया या सपोर्टिंग स्टडी कर दी, खत्म कर दिया। हाँ, कोई फील्ड ऐसा है जिसमें कि अवेलेबल नहीं है तो वो भी आपको प्रूफ देना होता है कि ये ईयर में इनके ऊपर स्टडी नहीं हुई है। अदरवाइज आप जो अपडेटेड जर्नल्स हैं उनको देखो और उनसे ये सेकेंडरी डाटा आप कलेक्ट करते हैं, जो सपोर्टिंग डाटा के फॉर्म में हम अपनी थीसिस में यूज करते हैं। ऑल्सो जर्नल आर यूजुअली मोर स्पेसिफिक when it comes to research। For example, we can have a journal on secondary data collection for quantitative data। जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के फॉर्म में हम इसको जर्नल्स को इसको ले सकते हैं। while a book will simply be titled secondary data collection, है ना, बजाय इसके कि हम बुक विल सिंपली भी टाइटल के भाई सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, इसको भी हम लगा के और हम उसके बाद में सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्वांटिटेटिव डाटा के में उसको सेकेंडरी डाटा को हम यूज कर सकते हैं। जो करते भी हैं हम लोग उसमें प्राइमरी डाटा का क्वांटिटेटिव जो भी डाटा होता है उसका जो आंकड़े हम लेते हैं ना कि इतना इतना ये हुआ, वो सारे के सारे आंकड़े जब हम दिखाते हैं, डाटा दिखाते हैं, इस ईयर में इतने इतने ये हुआ और इस ईयर में इतना मृत्यु दर हुआ, इतना इतना जो है आपका किसी भी चीज का, अभी जैसे कोरोना का चल रहा है कि इतना इतना ईयर में, तो आगे चल के आप इसको देखेंगे तो उसमें क्या है कि इस ईयर में इतना पीरियड में इतना जो है इंजेक्शन लगे, इतना ये हुआ। तो जो आंकड़े आप उठाते हो ये सारे के सारे आप जर्नल से जो उठाते हो तो वो भी आपका जो आपका क्वांटिटेटिव डाटा के फॉर्म में भी आप उसको यूज कर सकते हो। न्यूज़पेपर आप सब जानते हो, इन मोस्ट केसेस न्यूज़पेपर जो है उसके थ्रू हम लोग यूजुअली जो वेरी रिलायबल न्यूज़पेपर है उनसे हम ऑथेंटिक सोर्सेज है उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा। तो हम कहते हैं इस न्यूज़पेपर में ये वाली न्यूज छपी है तो उसको हम सेकेंडरी डाटा की तरह यूज कर सकते हैं अपने थीसिस में। द काइंड ऑफ डाटा कॉमनली शेयर्ड इन न्यूज़पेपर इज यूजुअली मोर पॉलिटिकल। ज्यादातर जो हम करते हैं उसमें ज्यादातर न्यूज़पेपर के थ्रू करते हैं वो मोर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल देन साइंटिफिक। साइंटिफिक नहीं होते वो उतने, साइंटिफिक की अपेक्षा वो क्या होते हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल होते हैं देन साइंटिफिक। बट साइंटिफिक वो कम होते हैं, कम साइंटिफिक होते हैं जो न्यूज़पेपर के थ्रू हम सेकेंडरी डाटा उठाते हैं। Therefore, newspaper may not be the best source of scientific data collection। इसलिए हम इसको नहीं वो कर सकते हैं। अब देखिए वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स आप सब जानते हो कि मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो डाटा आपको प्रोवाइड कराती हैं। ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स आजकल बड़ा इसका पैशन था, तो इसमें कैन नॉट ऑलवेज ट्रस्टेड, बट ये उतने ट्रस्टेड नहीं होते हमेशा। पर कोई भी ब्लॉग जो है वो गुड और बैड, लोग अपने आप को गुड वो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ब्लॉग लिखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक आप इसको नहीं कह सकते। डायरीज हैं, डायरीज जो होते हैं डाटा, दे आर पर्सनल रिकॉर्ड्स and as such rarely used for data collection by researchers। Also diaries are usually personal except for these days जिधर when people share public diary जो वो भी करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल डायरी का आप जैसे कहेंगे अन्ना फ्रैंक का डायरी है विच कंटेन्स एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द नाजी वार्स। अगर नाजी वार्स है तो उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड है वो डायरीज उसमें जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी आपके सेकेंडरी डाटा में आप यूज कर सकते हो। मार्केटिंग वगैरह में, मैनेजमेंट में, ह्यूमैनिटीज में एंड सोशल साइंसेज में आप उनको यूज कर सकते हो। और यूजुअली जो है वो प्लान्ड होते हैं, यूजुअली कलेक्टेड टू एड प्लान। इसमें जो है प्रॉपर प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ फंड्स, और इसमें सब प्रॉपर आप गवर्नमेंट के वहां से भी उठा सकते हैं। पॉडकास्ट आप सबको पता है जिसमें आपके इंफॉर्मेशन इज यूजुअली शेयर ड्यूरिंग पॉडकास्ट। कैसे listening can be used, it is source of data collection, letters, some other sources, radio station, public sectors also,
इसमें आपके बड़े पॉपुलर हैं जो आप सेकेंडरी डाटा के फॉर्म में ले सकते हो। अब व्हाट आर द सेकेंडरी डाटा कलेक्शन टूल? अब टूल क्या है इसके? देखिए टूल इसके हैं इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस, ठीक है। इंटरनेट डिवाइस जो है आपके पास पीसी, मोबाइल फोन, टैबलेट, जो जिनके थ्रू आप इन्हें एक्सेस कर सको। दे आर यूज्ड टू एक्सेस जर्नल्स, बुक्स, ब्लॉग्स, जितने भी कर सकते हो वो आपका इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आप सेकेंडरी डाटा। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। मैम 4 o'clock हो गया है, विद इन 15 मिनट आप अगर समराइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। विद इन 15 मिनट आई कैन समराइज विद इन 15 मिनट। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। एंड नेक्स्ट जैसे लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में तो है ही आपका सोर्स जिसमें कि जर्नल्स वगैरह जो भी हैं सारे लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। तो ट्रेडिशनल जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन टूल है वो रिसर्चर के लिए वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी कंटेन्स रेलिवेंट मटेरियल, लाइब्रेरी में रेलिवेंट मटेरियल होते हैं, वर्चुअली जो रिसर्च जो एरियाज होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। रेडियो स्टेशन, ये मुझे ज्यादा बताने का आई थिंक जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। रेडियो जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का टूल है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? हियर आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। मेन जो डिफरेंसेस है प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन टू दोनों में है? सेकेंडरी डाटा क्या होता है? वो सेकेंडरी डाटा मेड अवेलेबल टू रिसर्चर फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज आर फॉर्मरली प्राइमरी डाटा विच वॉज कलेक्टेड। ये एग्जिस्टिंग सोर्सेज में होते हैं जो फॉर्मरली पहले किसी ने प्राइमरी डाटा के फॉर्म में यूज किए होते हैं, वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा में ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाते हैं। अब इसमें आपको एग्जाम्पल में जरूरत नहीं है जाने की। अब इसमें डाटा टाइप, अब देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में डाटा टाइप का अंतर है। द डाटा टाइप, अब दोबारा मैं इसको एक कंक्लूड कर देती हूँ। द टाइप ऑफ डाटा प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी डाटा इज रियल टाइम, while the data provided by secondary data is stale. Researchers are able to have access to the most recent data when conducting primary research, which may not be the case of the secondary data. जो secondary data में वो primary data की तरह नहीं उसको कर सकते हैं। और secondary data have to depend on primary data. Secondary data primary data पे depend करता है। primary data आप direct collect करते हैं, लेकिन secondary data जब तक कोई इसको collect नहीं करेगा तब तक वो आपको available नहीं होगा। इसलिए it is depends upon secondary primary data. सेकेंडरी डाटा रेडीमेड भी तो कहीं से आएगा ना, जब किसी ने कलेक्ट किया होगा। कलेक्ट नहीं किया होगा तो आपको सेकेंडरी डाटा नहीं मिलेगा, इसलिए वो डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी डाटा। therefore reducing the amount of difference between the secondary data being used and the recent data. अब प्रोसेस में अंतर है दोनों का। आपको समझ में आया होगा। रिसर्चर आर यूजुअली वेरी इन्वॉल्व इन द प्राइमरी डाटा कलेक्शन प्रोसेसेस व्हाइल सेकेंडरी डाटा इज क्विक एंड इजी टू कलेक्ट। उसमें दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट प्राइमरी डाटा इज मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल। Primary research is mostly longitudinal. Therefore, researchers have to spend a long time performing research, recording information, analyzing the data, and data can be collected and analyzed within a few hours when conducting secondary research. तो उसमें ये डिफरेंस है इसमें मेन। अवेलेबिलिटी, डाटा की अवेलेबिलिटी में भी है। अवेलेबल डाटा इज अवेलेबल क्रूड फ्रॉम while secondary data is available is a refined form. जो प्राइमरी डाटा है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि फील्ड में जाना, पूरा डाटा कलेक्शन करना, और जबकि सेकेंडरी डाटा उसके अकॉर्डिंग इजी होता है। दैट इज सेकेंडरी डाटा यूजुअली मेड अवेलेबल। और सेकेंडरी डाटा दिस इज वे बिकॉज प्रीवियसली बीन ब्रोकन, क्योंकि सेकेंडरी डाटा जो है उसमें ब्रोकन डाउन रिसर्चर हु कलेक्टेड द प्राइमरी डाटा फ्रेश। अब जो आपने उस समय फ्रेश डाटा कलेक्ट किया उसने उसको ब्रोकन डाउन कर दिया, उसके बाद में वो उसको रीयूज हो जाता है। तो जो आपका सेकेंडरी डाटा है वो प्राइमरी डाटा जो पहले हो चुका होता है उसी को हम रीयूज करते हैं। जैसे गुड एग्जांपल इसका है थॉमस रॉयटर्स एनुअल मार्केट रिपोर्ट that are made available to the public. When Thomson Reuters collect this data afresh, they are usually raw and may be difficult to understand. They simply the result of the data by visualizing it with graphs, charts and explanations in words. डाटा कलेक्शन टूल भी सबके दोनों के अलग है। प्राइमरी डाटा में जो आप कलेक्ट करते हो उसमें सर्वेज, क्वेश्चनियर्स वगैरह के थ्रू करते हो, वाइल जो सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड यूजिंग द लाइब्रेरी बोर्ड। सेकेंड डाटा को आप लाइब्रेरी से, बोर्ड से, इंटरनेट से और बुक से, जर्नल से कलेक्ट करते हो, जबकि इसको डायरेक्ट सर्वे आप किसके थ्रू करते हो? क्वेश्चनियर के थ्रू करते हो। और सोर्सेज क्या है? प्राइमरी डाटा का जो सोर्सेज है वो उसमें सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनियर्स, फोकस्ड ग्रुप, इंटरव्यू एक्सेट्रा है। वाइल सेकेंडरी डाटा जो है उसके सोर्सेज क्या है? बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, वेब पेज एक्सेट्रा है।
accuracy and reliability, primary data is more accurate and reliable as compared to secondary data because direct collect करते हो आप data, तो इसलिए वो ज्यादा है. Cost effective आपको पता है primary data ज्यादा cost effective expensive होती है as compared to secondary data. And collection time, प्राइमरी डाटा के कलेक्शन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जबकि सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन में आपको एज इट इज जो है रेडीमेड होता है, आपको उठाना होता है एज इट इज, तो उसमें आपका डाटा कलेक्शन में टाइम कम लगता है. सिमिलरिटीज क्या है, ये तो डिफरेंसेस हो गए दोनों. अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में जो सिमिलरिटीज है वो क्या है. सेकेंडरी डाटा वाज वंस प्राइमरी डाटा व्हेन इट वाज न्यूली कलेक्टेड बाय द फर्स्ट रिसर्चर. जब पहला रिसर्चर उसको कलेक्ट करता है तो न्यूली कलेक्टेड जब वो होता है तो वो प्राइमरी डाटा होता है. The content of the data collected does not change and therefore has the same content with primary data. तो इसका मतलब उसका कंटेंट नहीं चेंज होता, वो जिस कंटेंट में उस समय यूज कलेक्ट किया होता है तो सेम कंटेंट होता है. तो इस तरीके से अगर वो प्राइमरी डाटा होता है तो इसका दोनों का इसमें सेम कंटेंट विद प्राइमरी डाटा उसी के अकॉर्डिंग जब हम उठाते हैं तो इसमें ये उसका भी सेम कंटेंट होता है, इसका भी. तो वो उस समय प्राइमरी डाटा होता है, बाद में वो जब वो न्यूली कलेक्टेड होता है तो ये सिमिलरिटी है दोनों के डाटा में. It doesn't matter if it was further visualized in secondary form. The content does not change, क्योंकि कंटेंट चेंज नहीं होता तो वो सेकेंडरी फॉर्म में अगर यूज हो रहा है तो पहले ने भी उतनी मेहनत से उसको डाटा कलेक्ट किया जैसे आज आप कर रहे हैं, तो उसका कोई इस तरीके का कोई इतना बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस और या बहुत ज्यादा इसको हम विजुअलाइज और उस फॉर्म में डिफरेंस नहीं मान सकते. अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ these are definitions, theorems and postulates that were made years ago but still remain the same. तो ये इनके अंदर सिमिलैरिटी है. यूजेस की सिमिलैरिटी है. प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आर बोथ यूज्ड इन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स. दे कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट द सेम काइंड ऑफ रिसर्च in these field depending on the data availability. This is because secondary data and primary data have the same content. The only difference is the method by which they are controlled. Since the method of collection does not directly affect the uses of data, they can be used to perform similar research. किसी भी रिसर्च में, फॉर एग्जाम्पल जैसे whether collected directly or from an existing database, the demography of the particular target market can be used to inform similar business decisions, conclusions. अब इसमें मेन चीज मैं जो आपको बताऊंगी वो क्या है, इथिकल इश्यूज. देखिए पीएचडी हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो इथिकल इश्यूज है उनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. साइकोलॉजिकल रिसर्च खास तौर से, साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंसर्निंग ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है, इसलिए उसमें इथिकल इश्यूज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. द रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड with fellow ethics, with follow ethics or moral principle while collecting the data. The principle are respect of person's privacy, चॉइस. अब जैसे इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेंट्स हैं. अब आप जब डाटा कलेक्शन करते हो तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो वॉलंटियर्स होने चाहिए, उनकी इच्छा हो, उनसे आप पूछ लो पूरा उनकी कि हाँ हम आपका डाटा कलेक्शन में सहयोग करेंगे. कई बार हम लोग जबरदस्ती वॉलंटियर को गलत लालच देके या हम कह देते हैं 10 मिनट लगेंगी बस प्रैक्टिकल में और लगती मान लीजिए 1 घंटा है, तो आपका ये जो है इथिकल इशू है, इसमें आपका डाटा भी नहीं मिलेगा ठीक से और आप डाटा कलेक्शन जो कर रहे हो वो आपका इथिकली रॉन्ग है. इन्फॉर्म कंसेंट. अब आप जब डाटा कलेक्शन जिससे कर रहे हो, जिस भी ग्रुप के ऊपर करना है, जिन भी लोगों के पार्टिसिपेंट के ऊपर करना है, उनको आप पहले से कंसेंट ले लो उनसे. उनके इंस्टीट्यूशन से कोई प्रॉब्लम हो वहां से कंसेंट ले लो, उनसे ले लो, कंसेंट लेटर ले जाके ले लो या पर्सनल लेवल पे ले लो, पर उनको एग्री कर लो उस चीज के लिए. और वॉलंटियर वो जो है वॉलंटरी जो है इन्फॉर्म करने के लिए, आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए, पूरा वो किस प्लेस पे करना है, किस टाइम पे करना है, ये सारा का सारा वो होना बहुत जरूरी है. और इसमें डीब्रीफिंग, आपको डीब्रीफिंग भी करना का, उसको बार बार उस तरीके के ब्रीफ करना कि बार बार, कई बार ऐसा होता है हम बहुत पहले करके छोड़ देते हैं कि उस दिन डाटा कलेक्शन करना है, तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी उनको याद दिलाना है बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पे. हो सकता है उनका कोई काम उस तरीके का हो तो आपको उसको भी मैनेज करना है. तो ये सब आपका इथिकल इश्यूज है. शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी. अब रिजल्ट जो स्टडी के आए हैं, अगर वो चाहता है कि मुझे शेयर करो तो वो भी आपको शेयर करना चाहिए. आपको अपना पर्पस बताना है कि रिसर्च किस लिए कर रहे हैं, आपको अपने जो रिजल्ट है, जो उससे रिलेटेड रिजल्ट है, वो उसको शेयर कराएं ताकि उसका इंटरेस्ट भी बना रहे, उसे लगे तो सही कि भाई मेरे ऊपर ये टेस्ट हुआ है, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे काउंसलिंग करानी है कि क्या करानी है, अगर कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है. और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको उसको डाटा को गोपनीय रखना है, उस व्यक्ति को बताना भी है और रखना भी है. उसका नाम और ये सब चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी है जिसके ऊपर ये डाटा कलेक्शन हुआ है, और रिजल्ट भी नहीं करने हैं. तो इस तरीके से जैसे आजकल ये प्लेजेरियम भी चला हुआ है, कट पेस्ट नहीं करना है. ये सब चीजें आपका इथिकल इश्यूज में आते हैं, इनको भी हमको रिसर्च में और डाटा कलेक्शन में इनको ध्यान रखना चाहिए.
Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, ma'am. ही इम्प्रेसिव और बहुत ही टॉपिक्स को अपने लेक्चर में इंक्लूड किया। आपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा से लेकर के स्केलिंग, जो बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली हम लोग जब थीसिस के फील्ड में देखते हैं कि स्केलिंग के आधार पे जब बच्चे स्टेट यूज करते हैं तो वो कई बार बहुत गलत होती है, और उस वक्त बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि आपकी जो ये स्टेट है वो गलत हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था जिस पे आपने फोकस किया मैम। और इसके अलावा